तो जो साइकेट्रिस्ट का एक ग्रुप होता है ना वो यही कहता है कि दैट करते करते हम खुद पागल हो चुके हैं। मोस्टली लोगों को इसलिए ही लगता है क्योंकि ये चीज़ चली आ रही है. टेल मी अबाउट योर एमडी डेज, आपका ईयर 1 कैसा रहा था? सो वी हैड टू डू अ लॉट ऑफ वर्क. लाइक आप सुबह जाओ 8 बजे, आप फ्री हो रहे हो रात को 8 बजे 9 बजे, तो उसमें इनिशियली तो ये फील आती है यार ये क्या मेडिसिन ही ले लिया क्या. इंडिया के वन ऑफ द 2 बेस्ट कॉलेजेस में, एक में यूजी करी, एक में डीएम करी। मैम से और एम से क्या डिफरेंस लगा? बट एम्स एट द एंड ऑफ द डे इज एम्स. आई वुड नॉट से कि भाई दिस इंस्टीट्यूट बेटर. एम्स. बट मी पर्सनली आई लव एम्स. यू नो, अ पर्सन हु हैज जस्ट क्रॉस नीट पीजी एंड आपसे पूछता है कि साइकेट्री क्या मुझे लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो आप उसको क्या पैरामीटर सजेस्ट करोगे? इस पे आप ये मत सोचो यार मुझे कोई और क्लिनिकल ब्रांच नहीं मिल रही तो चलो ये है मैं ले लेता हूँ. ऐसा नहीं है. आप अपने इंटरेस्ट से लो. कभी आपने देखा है पेशेंट्स को वायलेंट होते हुए? I have personally been slapped also. I've been choked also. अ प्राइवेट प्रैक्टिस और अ गवर्नमेंट और अ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, आपको किस चीज़ से खुशी मिल रही है एट द एंड ऑफ द डे, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. और क्या फाइनेंशियल एवेन्यूज होते हैं फॉर अ साइकेट्रिस्ट अपार्ट फ्रॉम द प्राइवेट प्रैक्टिस और अ गवर्नमेंट जॉब और कॉर्पोरेट जॉब? Hey guys, welcome to the Nachiket Bhatia show. Today we have a young psychiatrist with us with a superb resume. He has done his DM in addiction psychiatry, MBBS from Maulana Azad, MD in psychiatry from Ichbas Delhi, and is currently super specialized in addiction psychiatry from AIMS New Delhi. I was looking for a psychiatrist, a young psychiatrist, to give me today's POV, the Gen Z POV about psychiatric current condition. And believe me, I have got the best one. He has told me what psychiatry as a branch holds today, is doing a DM compulsion in today's time, and whether the budget 2026 is really a boon for this branch. Let's put our hands together and let's welcome a young psychiatrist, Dr. Siddharth Sood. So, hi, Dr. Siddharth. Welcome to the Nachiket Bhatia show. Hello sir, very nice to come here. Siddharth, I think you have come at a very crucial moment in the whole medical world. साइकेट्री एक ऐसी ब्रांच है राइट नाउ, इसको मैं कहूँगा सरकार सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रही है थ्रू इट्स इंटरिम बजट. आई थिंक द फाइनल बजट हो 2025-26. तो यानी साइकेट्री को कहा जा रहा है इट इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग. एंड बीइंग अ यंग साइकेट्रिस्ट विद ऑफ कोर्स अ वेरी फ्लॉलेस रिज्यूमे, आई वुड से यू कैन गिव मी अ वेरी जेंजी काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव कि आज के ज़माने में साइकेट्री की क्या वैल्यू है. मतलब आई एम अ थॉरो फैन ऑफ साइकेट्री एज अ ब्रांच, बट आई थिंक आई वुड नीड योर POV हेयर. बट बिफोर यू गेट इनटू दैट आई वुड लाइक टू नो योर जर्नी. कैसे यू एंटर इनटू द फील्ड ऑफ मेडिसिन, क्यों चूज करा आपने साइकेट्री को एज योर PG ब्रांच, Yeah. एंड उसके बाद? So sir, I have had quite a long journey. So I am a first generation doctor. I just always wanted to be a doctor. No other thing. I was not thinking anything else. I did my MBBS from MAMC. Then afterwards I was clear कि मुझे MD psychiatry करना है. So many reasons I was not a person who wanted to get into paraclinical branches. I enjoyed working with patients and talking to them and on the same hand I was not someone who can get into a surgical field. I was not interested and frankly I don't have the skills or the things needed to be a good surgeon. Then हमारे जो respective बाकी branches हैं medicine, pediatrics, psychiatry, dermatology, उसमें I was somehow attracted more towards these three branches: medicine, pediatrics, and psychiatry. Medicine is a very hectic branch to be honest, and I was not so towards medicine because of this being one reason, and similarly pediatrics also. Psychiatry is a branch जिसमें honestly MBBS में हमें बहुत ज़्यादा exposure नहीं मिलता. But I did my MBBS from MAMC. वहाँ पे we had like 4 weeks of posting while we were in second, third year. Then internship also we used to get 2 weeks minimum, and then I also did my optional posting in psychiatry. So मेरे को अच्छा खासा exposure मिला, and GB Pant is a very good hospital. So afterwards I was very clear कि I want to do this. Then I did NEET PG करा, I did my MD from Ibhas. Even when I got a good rank to get even other good branches, but I was clear. Most of the people told me कि भाई psychiatry कौन ही लेता है, psychiatry क्या branch है, टाइम वेस्ट कर रहा है, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंटली तो खुद पागल हो जाएगा. मतलब साइकाइट्रिस्ट के लिए ऐसा माना जाता है. एंड टू बी ऑनेस्ट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई वॉज नॉट 100% श्योर कि लाइक पागल होते हैं या नहीं, बट मुझे लगा चलो देखते हैं कोई नहीं. एंड आई टुक इट कि मैं तो लूँगा. एंड आई डिड माई MD. आई गॉट माई चांस टू डू MD फ्रॉम अ सेंटर लाइक एभास, विच इज़ वन ऑफ द टॉप सेंटर्स
in India, especially in North India and Delhi. I had very good exposure there. 3 years, I really enjoyed my time. And I was very happy. मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि यार 3 साल पहले मैंने गलती कर दी, लोगों की सुन लेता, मे बी कोई और ब्रांच ले लेता, बट मुझे कभी नहीं लगा उसमें. आई वॉज वेरी हैप्पी. उसके बाद आई डिड माई SRship ऑल्सो समटाइम, जनरल SRship, बट आई वॉज क्लियर कि मैं तो DM भी करूँगा. आई वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन एडिक्शन as a part of psychiatry. And then I got my chance, I gave exams, I got my chance to do my DM from AIIMS Delhi and NDTTC Ghaziabad, which is the AIIMS का center, which is the nodal center, जो कि जो भी देश में हो रहा है, सब कुछ guidelines, सब कुछ that is done there. I have had amazing time. I started, you can say, my journey in psychiatry in 2018, and now I'm done with it. I've done my DM, my tenure recently ended around 2 weeks ago. Amazing journey and just amazing. I just love this branch. There's nothing bad about psychiatry. The only thing which I feel is that there is more stigma for psychiatry with respect to our other respective branches and other doctors. And I understand medicine में there's a sort of hierarchy. जो surgery वाले हैं, they look down on medicine. Medicine वाले would look down on the others. But everybody in these so-called clinical branches is maybe looking down on psychiatry कि ये क्या branch है, ये पागल वाली branch है. लोगों मुझे ये भी मेरे जो कलीग्स हैं जिन्होंने रिस्पेक्टिव अदर MD करी कि यार 3 साल में क्या ही करते हो साइकाइट्री में, इतना होता है क्या, 3 साल का कोर्स होता है. तो मतलब यार वो तब भी लगता था होता तो है ही, अब कर रहे हैं. एंड फिर वही लोग जो मुझे पहले रोकते थे कि यार MD साइकाइट्री, फिर वही मुझे बोलते हैं कि अब साइकाइट्री में कौन DM करता है. DM तो ऐसे कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं, सर्जन होते हैं, ये मतलब DM कुछ लॉजिक नहीं बना. एंड मेरे को तब भी था चलो कोई बात नहीं, देखते हैं. एंड देन आई डन माई DM. आई एम लाइक वेरी हैप्पी टुडे. लाइक इट आई स्टार्टेड इन 2011 इन MAMC. 2025 में जाके मेरा सब खत्म हुआ. लॉन्ग टाइम बट नो रिग्रेट्स. आई एब्सोल्युटली लव medicine as a whole. I love psychiatry, I love addiction psychiatry, and I'm proud to say that I am a psychiatrist with subspecialization or super specialization in addiction, and I'm proud of this decision. And आज के टाइम पे जो आप भी कह रहे थे, जो बजट में चेंजेस हैं, they are great. And अभी it's time कि yes, government is doing everything. It's time for us also, and it's our respect all medicos also to understand your psychiatry is also a branch. It's a clinical branch. Please don't consider it इसमें इस any ब्रांच lesser. में इतना स्टिग्मा है क्यों? और बिल्कुल रॉ एक्सपीरियंस से बताना, बिकॉज मैं अग्री करता हूँ आपके साथ. कभी बात करता भी हूँ ना किसी साइकेट्री की, तो जो साइकेट्रिस्ट का एक ग्रुप होता है ना, वो यही कहता है कि दैट करते करते हम खुद पागल हो चुके हैं. साइकेट्रिस्ट भी मानते हैं, ऐसा नहीं है कि बाहर वाले कह रहे हैं. लेकिन इतना स्टिग्मा है क्यों? सर पहले तो जो ऑनेस्टली जैसे मैं आपको बताऊं, जो डिपिक्शन अगर आप मीडिया में देखो, मूवीज़ वगैरह में देखो, मेरा खुद का पहला एक्सपोजर जो था, आप एक मूवी है तेरे नाम, उसमें द वे दे शो कि भाई कैसे क्या हो रहा है, ऐसे बांध के रख रहे हैं, इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे हैं, सब है. पहले एक सिग्मा तो इस चीज़ से आता है जो कि बिल्कुल एक्चुअली सही डिपिक्शन नहीं है. सेकेंडली जो ये बात है कि भाई ज़्यादा टाइम साइकाइट्री में रहो खुद पागल हो जाते हो, वो चीज़ समहाउ लोग मानते हैं, जब जो पूरी तरह से सही नहीं है. अब जो हमारे बहुत सीनियर कंसल्टेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, साइकाइट्रिस्ट हैं, दे हैव देयर ओन वेज. सारे सीनियर डॉक्टर्स का होता है बिहेविंग, डूइंग. एंड आज की जनरेशन इज मे बी नॉट, इज़ वेरी डिफरेंट, है ना. माई टाइम जब मैं MAMC में था, तब द वे थिंग्स वर इन मेडिकल फील्ड आर वेरी डिफरेंट टुडे. आजकल एवरीबडी इज़ मोर सेंसिटिव, मोर स्मार्ट. उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मे भी इतना नहीं था. एंड सिमिलरली साइकाइट्री के लिए जो बहुत सीनियर साइकाइट्रिस्ट हैं, उनके लिए ऐसा माना जाता है इतने साल से ऐसे हैं तो ऐसे में भी पागल हो गए, यानी विच आई फील इसकी नॉर्मल पार्ट एंड पार्सल है. जो भी इतना बहुत एक्सपीरियंस है, दे हैव देयर ओन वेज ऑफ बिहेविंग, सीइंग पेशेंट्स इन देयर पर्सनल लाइफ्स ऑल्सो. मतलब साइकाइट्री को ऐसा माना जाता है यार इतने साल साइकाइट्री में लिए ऐसा पागल हो गया, ऐसा नहीं है. वो डेफिनेटली होता है कि आप केसेस देखो मे बी पे डे टू डे ऐसे विच आर डिफिकल्ट लाइक डिप्रेशन, acute suicidal risk and so on. It does affect you a bit, but honestly I don't think at the end of the day it affects me also. It used to affect me a lot. Starting में I used to think कि क्या है कर सकते हैं, क्या हो रहा है. Like to be honest, most of the psychiatric conditions are chronic illnesses which may need treatment for much longer than, and honestly सारी medical branches में हो रहा है. Diabetes needs treatment long, hypertension needs. तो इसलिए one of the reasons, तो एक कारण तो ये है कि यार लोगों को लगता है भाई एक बार दवाई शुरू हो गई ज़िंदगी भर चलती रहेगी, कुछ होना नहीं है. एंड ऑनेस्टली लोगों को अपने लिए लगता है यार हम रोज़ ऐसे पेशेंट्स देखेंगे, हमारे साथ भी ऐसा हो जाएगा. ऐसा नहीं होता. ऑनेस्टली मैं 2018 से अभी तक हूँ. आई डोंट थिंक अभी तक मेरे साथ ऐसा हुआ है. आगे का मैं कह नहीं सकता, बट दैट इज़ व्हाट आई फील. सो मोस्टली इट्स जस्ट द इमेज जो बनी हुई है ना. हम लोग टेक्स्ट बुक्स देखते हैं यार, सीनियर लोग हैं जैसे सिगमंड फ्रॉयड है, उन्होंने थोड़ी अपनी थ्योरीज दे दी, मे बी जो आज के टाइम पे बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं है, बट लोग उनको देखते हैं, सोचते हैं कि अरे ये तो मतलब ऐसा था. कौन सी थ्योरी उनकी एप्लीकेबल लगती है आपको आजकल? सर आप उनकी अगर साइकोसेक्सुअल थ्योरी देखें, वो मुझे कभी भी ऑनेस्टली ना ज़्यादा समझ आई, ना मुझे एप्लीकेबल लगी.
तो ऐसे बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं साइकाइट्री में जो कि ईयर ऑन ईयर पहले रहीं। तो मे बी उनके कारण भी लोगों को लगता है कि यार ये चीज़ों का क्या सेंस बना, ये कहाँ कैसे प्रूव होगा, क्या है, ये पागलों वाली बातें हैं। तो उसके कारण थोड़ा स्टिग्मा रहता है। एंड ऑनेस्टली यही कारण है कि कंटिन्यूड रहता है कि आज भी स्टिग्मा है, लोग अभी भी सोच रहे हैं साइकाइट्रिस्ट खुद पागल हो रहे हैं। मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स आर नॉट गुड एट प्लानिंग, और उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आई हैव क्रिएटेड दिस प्लानर। प्लान योर डे, प्लान योर गोल्स एंड एग्जीक्यूट देम ऑन अ डेली बेसिस। ये मत सोचो कि रैंक 1 आनी है, ये सोचो कि आज के दिन पे मुझे कितने टेस्ट देने हैं, मुझे कितने एमसीक्यू मार्क करने हैं और मुझे कितनी वीडियोस देखनी है। रैंक 1 तभी पॉसिबल है जब 365 दिन आप अपने गोल्स अचीव कर पाओ। इसको एक बार यूज करके देखो एंड गिव मी योर ऑनेस्ट फीडबैक। इज इट रियली दैट हेल्पफुल? डॉक्टर्स को क्यों लगता है कि ये ब्रांच खराब है? सर डॉक्टर्स को एक तो ऑनेस्टली एमबीबीएस में इतना एक्सपोजर नहीं होता साइकाइट्री का, तो मोस्टली लोगों को पता नहीं होता कि एक्चुअली साइकाइट्री क्या हो रहा है। साइकाइट्री में लोगों को लग रहा है यार साइकाइट्रिक पेशेंट मतलब वहाँ पागल होंगे जिनको बांध के रखा है चेनों से, इलेक्ट्रिक झटके दे रहे हैं। एंड ऑनेस्टली एमबीबीएस में इतना एक्सपोजर नहीं होता। अब एमबीबीएस करते हुए लोगों को लगता है यार ये ऐसा सच्चा, ये ऐसा हो रहा है, हम लेंगे मोर हमारे साथ भी ये हो जाएगा। तो इसलिए लोग ऐसा मानना शुरू कर देते हैं। और इसमें क्या है, एमडी में आप 3 साल में क्या कर लोगे, एमडी में क्या ही होता है, बट ऐसा नहीं है। मोस्टली लोगों को इसलिए ही लगता है क्योंकि ये चीज़ चली आ रही है, मतलब इस सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो पास ऑन हो रही है समहाउ सबको लग रहा है होगा ऐसा, या क्या ज़्यादा सोचना है, ये पागलों वाली ब्रांच लोग सोच रहे हैं। टेल मी अबाउट योर एमडी डेज। आपका ईयर 1 कैसा रहा था? सर एमडी टू बी ऑनेस्ट was very hectic. IBHAS just may I did my MD from IBHAS, which is such a big center. So we had to do a lot of work. Like बहुत पेशेंट वहाँ पे, जब मेरे टाइम पे प्री कोविड टाइम समथिंग में अराउंड 250 बेड्स फंक्शनल थे. So we had to do a lot of work. Like we used to have like 20-25 patients. आप सुबह जाओ 8 बजे, आप फ्री हो रहे हो रात को 8 बजे 9 बजे. तो उसमें इनिशियली तो ये फील आती है यार ये क्या मेडिसिन ही ले लिया क्या, 12 घंटे 13 घंटे. एंड अलॉन्ग विद दैट आपको सब एकेडमिक्स करना है, हर चीज़ करनी है. And to actually settle into that कि yes this is the branch, these are the things. तो it was initially ये कि to get adjusted to इतना work and understanding चीज़ें कि भाई एक्चुअली क्या हो रहा है, and जैसे like लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, पेशेंट्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, all those things were different from medicine honestly. अब जैसे मेडिसिन में आके पेशेंट बात करते हैं वो मे बी साइकाइट्री में थोड़ा अलग होता है. तो टू अंडरस्टैंड दोज थिंग, एडजस्ट टू दैट, इनिशियली इट टुक मी सम टाइम एंड बहुत सारी चीज़ें टू अंडरस्टैंड कि क्या कर सकते हैं, टू नॉट बी होपलेस माई सेल्फ. मतलब एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ क्रॉनिक इलनेस. माई वर्क हेयर इज़ टू हेल्प पेशेंट टू द बेस्ट एविडेंस, बेस्ट रिसोर्सेज अवेलेबल. एंड ये चीज़ें समझने टुक टाइम, बट बाय द लाइक माई फर्स्ट ईयर समथिंग आई वॉज लाइक गेटिंग अ हैंग ऑफ इट. मुझे अच्छा लगा, मुझे समझ आया. And academics, I started enjoying them. Second, third year, I really enjoyed. I was like very happy in my residency of 3 years. Normally people do not go for DM in psychiatry. But I've seen so many cases. MD psychiatry को end मानते हैं and then they start their own practice or doing something else. आपने क्या सोचा कि मुझे DM करनी है, उसके बाद फिर वो भी एडिक्शन साइकियाट्री में करनी है? सर मुझे ये लग रहा है कि आज के समय में फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनेस्टली MD साइकाइट्री की बहुत सारे पीपल हैं डन देयर MD साइकाइट्री एंड डूइंग ग्रेट. तो मुझे लग रहा था कि यार जब DM अवेलेबल है, आउट देयर है, तो आई शुड डू. पर्सनली मुझे ये लगा कि यार DM का होता है कि हाईएस्ट डिग्री पॉसिबल है, तो मैं लेना करना चाहता हूँ प्योरली कि यार दिस विल ऑल्सो हेल्प मी स्टैंड अपार्ट. पहले मुझे ये लगा. एंड देन एडिक्शन का ये होता है कि लाइक 3 साल का व्हेन वी डू MD वी हैड वेरी गुड एक्सपोजर. हमें अराउंड 6 मंथ्स पोस्टिंग मिलती थी. उन 6 मंथ्स में मुझे लगा कि ये उतना सफिशिएंट नहीं है. मैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो करना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ. एज ए MD डॉक्टर हाँ मैं कर सकता हूँ. अब लोग मेरे को ये बोलते हैं यार काम तो, अब दवाई तो आप वही लिख रहे हो. तो सच बात है यार, दवाई तो एज MD भी मैं वही लिख देता. बट अब मैं एज DM जब लिखता हूँ बहुत सारी बातें सोच के लिखता हूँ अपने लिए, पेशेंट के लिए, यार क्या क्या देखना है, क्या सोचना है. एंड देन to give the exam वगैरह दिया, to get an opportunity to work in a center like AIIMS, which is like the premium institute in this country. I just was very sure कि I will do. Just and DM yes. अब मेडिसिन में मुझे ये नहीं लग रहा है कि MD किसी भी चीज़ में इज़ द टर्मिनल. ये DM करना आज के टाइम पे आई थिंक इज़ द नीड ऑफ द आवर. एंड DM करके आई एम ठीक है, बात वही होती है कि आप फिर से 3 साल वही काम कर रहे हो, वही SJR वही चीज़ें करे जा रहे हो. बट एट द एंड इन द एंड इट्स टोटली वर्थ इट. सो आई वॉज श्योर एंड आई एम वेरी हैप्पी. मुझे ही नहीं लग रहा, बहुत सारे लोगों का ओपिनियन था कि यार आपको बाद में प्राइवेट प्रैक्टिस करनी है, जितनी जल्दी यू सेटल इन मार्केट, यू गेट इन टू मार्केट, ज़्यादा पेशेंट्स बनेंगे, वो ठीक है, वो बातें ठीक होंगी डेफिनेटली. बट आज के टाइम पे आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इन दीज थिंग्स, द एडिक्शन रिलेटेड, विच
मे बी आई वॉज नॉट आफ्टर माई MD. सो ये 3 साल वर ग्रेट एक्सपीरियंस. जितना भी टाइम लग गया. अब इट हैज़ टेकन मी टाइम टू गेट अब प्रैक्टिस करने में, आने में, बट ठीक है, दैट इज़ फाइन. साइकेट्री में डीएम के क्या क्या ऑप्शंस हैं? सर अभी इंडिया में एटलीस्ट एक तो एडिक्शन साइकाइट्री है जो कि PGI, एम्स और निमहांस में है. उसके अलावा चाइल्ड साइकाइट्री है जो कि मेरे ख्याल से PGI और निमहांस में है. देन जेरियाट्रिक साइकाइट्री शायद KGMC में है, निमहांस में, PGI नॉट वेरी श्योर. देन PGI में दे हैव ऑल्सो स्टार्टेड फॉरेंसिक साइकाइट्री में DM. एंड एम्स दिल्ली में दे हैव अभी स्टार्टेड CL साइकाइट्री, कंसल्टेशन लाइसेंस साइकाइट्री. तो उसमें भी अभी रिसेंटली DM स्टार्ट हो गया. काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर रहे हैं इस ब्रांच को. सर वही बात है, जैसे मेडिसिन में इनिशियली है MD मेडिसिन वाला, ये नेफ्रो भी देखता था, कार्डियो भी देखता था, वो कर सकता था. अब आज कार्डियोलॉजिस्ट देखता है. ऐसे ही साइकाइट्री में भी है. आज चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट हैं जो कि बेटर देख सकते हैं, बेटर सोच सकते हैं. एंड सिमिलरली एडिक्शन साइकाइट्री हो गया, जेरेट्रिक साइकाइट्री हो गया, इमरजेंसी वगैरह हो गया. तो जैसे मेडिसिन की चीज़ें हो रही हैं वैसे ही साइकाइट्री, कि साइकाइट्री में भी हर चीज़ को टाइम लग रहा है. 10 मे बी 15-20 साल सब पहले सबको लगता होगा फिर से क्या कार्डियोलॉजी करनी, कर तो ली MD मेडिसिन. ऐसे ही आज में भी साइकाइट्री उस जगह पे है कि क्या जो पहले लोग सोच रहे हैं यार कि सिर्फ MD उससे हो जाएगा, बट ऑनेस्टली अब DM का ही समय है. सो टेल मी, आपने एडिक्शन साइकेट्री करी, जो आपके डीएम के दिन रहे होंगे, तेरे नाम से कितने आसपास थे? सर तेरे नाम मूवी देखी थी आपने? सर वो मुझे आज तक कभी फील नहीं हुआ, चाहे MD था DM था, वैसा कभी नहीं होता. वो उससे प्रोपोगेट हो रहा है कैसा हो रहा है, ऐसा कहीं नहीं होता. साइकाइट्री इज़ अ वेरी एथिकल ब्रांच. पेशेंट केयर एंड पेशेंट राइट्स हम बहुत ज़्यादा इस चीज़ की टेक केयर करते हैं. इंडिया में जो जितने भी लॉज हैं, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट है, वेरी उसमें हर चीज़ क्लियर है कि क्या नहीं करना, क्या करना है, और पेशेंट राइट्स क्या हैं, एथिक्स क्या हैं. तो ऐसा कहीं नहीं होता. कहीं पेशेंट्स को कोई बांध के नहीं रखता, कोई ज़बरदस्ती इलेक्ट्रिक झटके नहीं देता. तो मूवीज़ में दिखा रहे हैं बिल्कुल झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है. आप जनरल पब्लिक या जो भी देख रहा है, सुन रहे हो, उसके बाद समझनी है कि ऐसा कहीं नहीं होता हमारे देश में. एंड ऐसा दिस इज़ नॉट साइकाइट्री. साइकाइट्री इज जस्ट अ मेडिसिन ब्रांच. जैसे मेडिसिन में नॉर्मल पेशेंट जिनको नीडेड है वो आएंगे, एडमिट होंगे, बेड पे होंगे, ऐसे ही साइकाइट्री, कुछ डिफरेंस नहीं है. वही सब हम करते हैं जो मेडिसिन में होता है, आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं, वही साइकाइट्री में हो रहा है, कुछ अलग नहीं है. एंड ये सब कहीं नहीं बांध रहे, वो वक्त चला गया, मे बी 100, 150, 200 साल पहले हो रहा था. कहीं नहीं होता अब ऐसा. एंड ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी. मूवीज़ वगैरह में भी अब ऐसी आनी चाहिए जो दिखा रही हैं आजकल. तो मे भी बहुत सारा कंटेंट है जो नॉर्मलाइज कर रहा है कि भाई क्या होता है रिहैब, या क्या होता है एडिक्शन ट्रीटमेंट, क्या होता है थेरेपी, जो दिखा रहे हैं. तो लोगों को वो चीज़ देखनी चाहिए कि एक्चुअली क्या है. वो सब चीज़ें अब भूल जाने का वक्त है. अब नॉर्मलाइज करने का वक्त है कि भाई हाँ, साइकाइट्री भी नॉर्मल ब्रांच है. ओके, टेल मी अबाउट दिस एडिक्शन ट्रीटमेंट, क्या होता है इसमें? सर एडिक्शन में भी हम इनिशियली अब पेशेंट को या तो हम वही कर सकते हैं, या तो OPD या इन पेशेंट, अगर जो भी नीड है. एडिक्शन में भी हम यही समझते हैं यार, दिस इज़ ऑल्सो अ क्रॉनिक इलनेस. तो अब जैसे पेशेंट एल्कोहल यूज़ कर रहे हैं, तो इट्स अ क्रॉनिक इलनेस, एल्कोहल यूज डिसऑर्डर. तो हम पेशेंट को आएंगे, उनको हम सबसे पहले एक्यूट विड्रॉल मैनेजमेंट करेंगे. अब पेशेंट एल्कोहल ले रहे हैं, तो इनिशियली हम एल्कोहल तो नहीं ही आपको देंगे, तो बेंजोडाइजेपिन वगैरह देते हैं मैनेजमेंट करने के लिए. उसके लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में एक बार पेशेंट के विड्रॉल वगैरह सेटल हो जाए, हम और चीज़ें कर सकते हैं कि बाद में क्रेविंग्स ना हो, इश्यूज़ ना हो, विड्रॉल सिम्टम्स ना हो, उसके लिए मेडिकेशन दे सकते हैं. अलॉन्ग विद दैट कि मेडिकेशन हैव देयर रोल, क्या थेरेपी करनी है, कैसे करते हैं, वो सब हम ऑफ़र करते हैं. कि भाई आप भी तो ठीक है, अभी हम आपको ऑफ़र कर रहे हैं, ट्रीटमेंट दे रहे हैं, बट बाहर जब आप जाओगे वही दुनिया सब कुछ है. जिस कारण से पहले आप सब्सटेंस यूज़ कर रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे, वो चीज़ें रहेंगी. हम सर्कमस्टेंस नहीं बदल सकते, बट आप कैसे बेटर हैंडल कर सकते हो इन चीज़ों को, वो सब स्किल्स हम बेसिकली सिखाते हैं पेशेंट्स को. और जितनी भी साइकाइट्री के इलनेसेस है, सब में हम ये सिखाते हैं कि यार मेडिसिन का अपना रोल है, थेरेपी का अपना रोल है, और हम क्या चीज़ बेटर कर सकते हैं, वो सब एज साइकाइट्रिस्ट हम उनको सिखाते हैं. इंडिया के वन ऑफ द टू बेस्ट कॉलेजेस में, एक में यूजी करी, एक में डीएम करी, मैमसी और एम से क्या डिफरेंस लगा? मैमसी एंड एम्स आर एंटायरली डिफरेंट. एंड ऑल्सो मेरे लिए आई वुड से कि आई वॉज एट डिफरेंट स्टेज इन माई लाइफ व्हेन आई एंटर्ड मैमसी एंड व्हेन आई एंटर्ड एम्स. मैमसी में आई एंटर्ड एज अ टीनेजर ऑनेस्टली, है ना, एंड फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर, मुझे नहीं पता था क्या होता है. एंड मैमसी के 5.5 years टू बी ऑनेस्ट वर द बेस्ट फॉर मी. आई लव दैट प्लेस. मैमसी इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट, बेस्ट हॉस्पिटल. तो आई स्पेंड माई 5.5 years देयर. मैमसी में आई थिंक मेरे टाइम पे एटलीस्ट 250 का बैच होता था. सो देर वॉज अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन, हमारे एकेडमिक्स वगैरह सब कुछ अच्छा था. एंड द काइंड ऑफ थिंग्स इन मैमसी वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम थिंग्स विच are there in AIMS. My wife has done her MBBS MD from AIMS Delhi. So we often talk, there is like this thing कि मैम से बेटर है, एम्स बेटर है. ये चलता आता है कि भाई लोग जो एम्स वाले लोग हैं हम बोल रहे हैं एम्स बेटर है, मैम सी लोगों को संभव लग रहा है मैम सी बेटर है. तो दोनों इंस्टीट्यूट्स का अपना फ़ायदा नुकसान है. मैम सी दिल्ली में है, मे बी एम्स इज़ द नंबर इंस्टीट्यूट इन कंट्री, तो है. दोनों इंस्टीट्यूट्स आर ग्रेट, बट फॉर मी पर्सनली आई लव मैम सी.
I have done my, that is a place which made me a doctor. That is a place I spent my younger year, formative years. I love that place, absolutely. एम्स में क्या लगा बेटर? सर एम्स वगैरह का, एम्स एज ए इंस्टीट्यूट जिसमें ना, एम्स का जो नाम है, एम्स में वो आपको जो काम आप करो, काइंड ऑफ एक्सपोजर टू गेट, जैसे अब मिनिस्ट्रीज, अदर थिंग्स, एंड जो चीज़ें हो रही हैं आर मच फास्टर, मोर स्ट्रीमलाइंड. एम्स का आई अंडरस्टैंड, एम्स का जो बजट है मे बी ज़्यादा है, सब चीज़ें आर मोर स्ट्रीमलाइंड, हर चीज़ हो रही है. एंड एम्स में आई केम आफ्टर डूइंग माई MBBS MD, इतना तो बहुत सारी चीज़ें मुझे भी ज़िंदगी में पर्सनली प्रोफेशनली समझ आ गई थी जब तक मैं एम्स में आया. बट एम्स एट द एंड ऑफ द डे इज एम्स. आई वुड नॉट से कि भाई दिस इंस्टीट्यूट बेटर, एम्स एम्स है, नो डाउट, नथिंग. बट मी पर्सनली आई लव एम्स. अगर आज आपके पास कोई स्टूडेंट आए, यू नो, अ पर्सन हु हैज जस्ट क्रॉस नीट पीजी एंड आपसे पूछता है कि साइकेट्री क्या मुझे लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो आप उसको क्या पैरामीटर सजेस्ट करोगे? डेफिनेटली सर, पहली बात तो आई वुड सजेस्ट कि आप साइकाइट्री टू टेक और नॉट इज़ अपने इंटरेस्ट पे डेवलप होता है. इस पे आप ये मत सोचो यार मुझे कोई और क्लिनिकल ब्रांच नहीं मिल रही तो चलो ये है मैं ले लेता हूँ, ऐसा नहीं है. आप अपने इंटरेस्ट से रहो. साइकाइट्री कोई भी आप ब्रांच लेते हो आपके पास ज़िंदगी भर वो रहेगी. यू विल बिकम दैट डॉक्टर. अब साइकाइट्रिस्ट हो गया जो भी है, तो आप पहले आपको ये बात सोचनी कि यार 3 साल की बात नहीं है, ज़िंदगी की बात है. एंड साइकाइट्री में आपको पहले समझ आनी चाहिए चीज़ें क्या हो रही हैं, है ना. इमीडिएटली बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेडिसिन से डिफरेंट हैं. तो आप ये पहले मत सोचो यार कि मुझे और कुछ नहीं मिला, आप साइकाइट्री में भी मिल रहा है तो मैं ले लूँ क्लिनिकली, वैसा मत करें. आप ज़रूर पहले थोड़ा एक्सपोजर आपको होना चाहिए. नहीं है तो आप एटलीस्ट कुछ जीआरशिप वगैरह करके लें कि यार प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, आप ये ले लें. और टू बी ऑनेस्ट, आप जो हमारे सीनियर्स हैं, मे बी अब जिनको 5 साल 10 साल हुए उनसे लें. आप बहुत ज़्यादा जो हमारे सीनियर हैं, दे आर वेरी ग्रेट साइकाइट्रिस्ट, बट उनका वक्त वॉज डिफरेंट. आप आज के लोगों से मिलें, समझें आपको कौन सा सेंटर मिल रहा है, वहाँ पे क्या चीज़ चल रही है, एंड उसके हिसाब से प्रोसीड करें. थोड़ा आप एक्सपोजर ले लो कि सेंटर में जो भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं क्या हो रहा है, नहीं हो रहा. एंड आप ये समझ लें कि साइकाइट्री इज़ गुड फॉर यू और नॉट. आप इन बातों में मत करो कि यार क्लिनिकल है और कुछ नहीं मिल रहा. आप अपना पहले देखो कि आपको साइकाइट्री लेनी है. यानी ये साइकाइट्री के एडवांटेजेस हैं, किसी भी ब्रांच के तरह इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज है. साइकाइट्री इज़ अ ब्रांच विच विल गिव यू सॉर्ट ऑफ अ वर्क लाइफ बैलेंस. इट्स अ क्लिनिकल ब्रांच, बट एट द सेम टाइम देयर आर थिंग्स आपको ये समझना है कि कैसे, जब तक आप हॉस्पिटल में हो वो चीज़ें सोचनी है, घर आके क्या सोचना है. तो आपको ये चीज़ें देखनी है कि यार इस एम आई समवन जो कि साइकाइट्री ले सकता है ऑनेस्टली, एंड इसमें ये चीज़ें हैं. तो आप एक बार पहले थोड़ा खुद एक्सपोजर ले लें, उसके बाद आप ज्वाइन करें साइकाइट्री. तो जो लोग ये कहते हैं कि साइकेट्री एक ईजी ब्रांच है ना कंपेयर टू मेडिसिन एंड सर्जरी या कंपेयर टू एनी अदर ब्रांच, आप इससे एग्री करते हैं? सर इजी डिफिकल्ट आई डोंट नो. मतलब अब जैसे आई डिड माई रेजिडेंसी, हमें 12-13 घंटे काम करना पड़ता था. अब शायद मेडिसिन में भी इतना ही होता होगा. मेरे जो कलीग्स हैं जिन्होंने मेडिसिन में MD करा मेरे टाइम पे, तो वो लोग भी इतना काम कर रहे थे. अब अगर मुझे वो पैरामीटर देखना है यार, काम तो मैं भी उतना ही कर रहा हूँ, एकेडमिक्स मैं भी कर रहा हूँ, पेशेंट्स मैं भी सब देख रहा हूँ, एग्जाम मैं भी दे रहा हूँ. तो ईजी डिफिकल्ट आई डोंट नो, सिलेबस उतना ही सबका. आई थिंक जितना 3 साल में MD मेडिसिन है उतना ही ये है. ईजी डिफिकल्ट आई डोंट नो, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट. आई सीरियसली कांट से कि भाई MS सर्जरी वाले करना मे बी उनके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट है. वर्किंग आवर्स आप हर वक्त रहते हो, साइकाइट्री में वो नहीं है. साइकाइट्री में भी हमें इमरजेंसी पोस्टिंग होती है, हम 24-36 घंटे काम करते थे. मैंने अपने MD में करा है कि आप सुबह 8 बजे आ रहे हो, अगले दिन 3-4 बजे फ्री हो रहे हो. हाँ, वो मैंने भी करी हैं चीज़ें, सारे साइकाइट्री रेजिडेंट्स करते हैं. बट मे बी हम वो चीज़ नहीं कर रहे हैं कि यार OT में जा रहे हैं, वो सब वो नहीं कर रहे हैं. एंड सिमिलरली हमें भी बहुत सारी चीज़ों का अलग अलग एक्सपोजर मिलता है हैंड्स ऑन. ऐसा नहीं है कि साइकाइट्री बिल्कुल ऐसी ब्रांच है कि भाई बस दूर बैठ के कर लो, ऐसा नहीं है. बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, हम ECT करते हैं, RTMS करते हैं. तो अब आप ऐसा सोचा, ऑनेस्टली मैं ये नहीं कह सकता कि एक ब्रांच इजी या डिफिकल्ट है. टोटली मतलब इफ़ यू आर इनटू साइकाइट्री एवरीथिंग इज इजी, इफ़ यू आर इनटू सर्जरी दैट इज इजी, इफ नॉट देन लाइफ इज हेल. तो ऐसा सोचना चाहिए. कभी आपको लगा इट्स अ वेरी इमोशनली डिमांडिंग ब्रांच? एट टाइम्स हाँ सर. स्टार्टिंग में देयर वर टाइम्स व्हेन आई यूज्ड टू फील कि अब मे बी बहुत ज़्यादा चीज़ पेशेंट के लिए हम नहीं, वी कैन नॉट डू अ लॉट. देयर आर लिमिटेशंस कि हम क्या हद तक कितनी हेल्प कर सकते हैं. एंड ऑनेस्टली फिर जब आपको ऐसे केसेस बार बार देखो, टू शेयर, वी यूज्ड टू हैव स्पेशलिटी क्लिनिक्स इन माई MD डेज. वन ऑफ द क्लिनिक वॉज फॉर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. अब इभास इज़ अ वेरी बिग सेंटर, लोग बहुत दूर दूर से आते हैं कि यार हम पटना से आए, इधर से आए, अपने बच्चे का इलाज करानी है. अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज समथिंग विच कैन नॉट बी ट्रीटेड, इट कैन जस्ट बी मैनेज. हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते जो है उससे इंप्रूव हो जाए. अब हमें तो ये बात बहुत जल्दी समझ आ जाती है. अब पेरेंट्स एवरी वीक आ रहे हैं दूर दूर से, टू मैनेज देम, टू कन्वे टू देम कि यार देर आर लिमिटेड थिंग्स ओनली जो विच वी कैन डू. तो इट काइंड ऑफ टेक्स अ टोल ऑन यू इन द बिगिनिंग कि मतलब हम लोग ऑनेस्टली यूज क्वेश्चन कि क्या ही कर रहे हैं.
आपको लगती है बात, एंड बाकी ब्रांचेस में भी डेफिनेटली होता होगा जो क्रॉनिक इलनेसेस से डील कर रहा है, बट एट द एंड ऑफ द डे हम वी आर स्टिल मेकिंग अ डिफरेंस. हम उनको एजुकेट कर रहे हैं, जो मेडिसिन नीडेड है दे रहे हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से उनको बेनिफिट्स दे सकते हैं वो दिलवा रहे हैं. तो डेफिनेटली सारे साइकाइट्रिस्ट रेजिडेंसी में आपको ये लगता है, बट बहुत सारे ऐसे केस हैं आपको बहुत क्लिनिकली अच्छा भी लगता है. पेशेंट्स आ रहे हैं जो कि एक्यूटली सुसाइडल है, आप उनसे का बात करो, ठीक करो, एंड 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद दे इम्प्रूव, एंड 1 साल 2 साल बाद सेम पेशेंट को आप ओपीडी में देखो, दे हैव इम्प्रूव सो मच, दे हैव डन मूव्ड ऑन विद देयर लाइफ सो मच, एंड आपको बहुत अच्छा लगता है. क्लिनिकल सेटिस्फेक्शन वैसा ही मिलता है जो मे बी मेडिसिन या सर्जरी में होगा. बट या वो चीज़ हमेशा आपको इनिशियली लगती है कि यार व्हाट एम आई इवन डूइंग, कि क्या ही फर्क पड़ रहा है, बट ओवर टाइम आप रियलाइज कि यस यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड मुझे भी यही लगा, एंड आज के समय में उनको यही लगता है. एक पॉइंट है साइकेट्री को लेकर. हाँ जी सर. Okay, you have done it from a great institute, all right, and I think it's basically in a first tier city. Yeah. A friend of mine is doing psychiatry, has done psychiatry in a second tier city like Meerut, all right. तो जब भी मुझे कहानी सुनाता था ना, तो सारी कहानियाँ क्या होती थी कि द रूरल इंडिया स्टिल बिलीव्स अ लॉट इन अंधविश्वास. Yeah. A simple seizure is called माता आ गई है, all right, and he saw so many young females, especially young females. कोई बालों से घसीटता हुआ ला रहा है उनको, ऑल राइट, किसी ने उसका पूरे मुंह पे लाल कर रखा है, चुड़ैल बता देते हैं, ऑल राइट, एंड दिस काइंड ऑफ स्टफ इज हैपनिंग. ये भी एक साइकेट्री का एक इंटरिम पार्ट है, बिकॉज अगर आप टॉप टियर सिटी में नहीं हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड के अंदर हो, तो ये आपको देखने को मिलेगा. इसको कैसे डील करते हैं? सो डेफिनेटली, एंड इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, एंड ये एज अ साइकाइट्रिस्ट ये मेरा रोल है टू एजुकेट एंड मेक रेज अवेयरनेस अबाउट साइकाइट्री. लोग मानते हैं, आपने देखे ऐसे केसेस? बहुत केसेस होते हैं सर ऐसे लोग. पहले मुझे बताओ आपने कौन से केसेस देखे? सर जैसे अब बहुत सिंपल होता है, जैसे डिसोसिएशन होता है. अब लोग उनको ये मानते हैं कि भाई ऊपरी हवा लग गई, किसी ने काला जादू कर दिया. सिमिलरली बहुत सारे साइकोसिस वाले केसेस होते हैं. अब कुछ दिन में ऐसे एक्यूट ऑनसेट हो गया, कुछ हो गया, तो लोग ऐसे बोलेंगे किसी ने काली नज़र लगा दी, ये हो गया, हम बाबा के पास ले जाते हैं, और ऐसा लोग करते हैं, वो हमारे कल्चर का पार्ट है. एज अ साइकाइट्रिस्ट मेरा रोल उनको ये समझाने की ठीक है आपकी जो बिलीव्स हैं वो ठीक है, मैं नहीं कहूँगा वो सही है गलत है, मैं किसी के बिलीव्स को क्वेश्चन नहीं करूँगा, बट मेडिसिन ऐसा मानती है, मेडिकल ट्रीटमेंट ये है ना, हमें करना चाहिए. इंडिया जैसे देश में बहुत ज़्यादा ऐसी बातें हम लोग मानते हैं जो हमारा कल्चर है, तो ये और ज़्यादा चैलेंजिंग हम लोगों के लिए हो जाता है कि हमें सामने वाले फैमिली मेम्बर से कैसे डील करना है, कि उनको भी ये बात समझाएं कि यार दिस इज़ अ साइकाइट्रिक इलनेस. इसका ये अगेन इसका ये मतलब नहीं कि आपका जो भी जिसको आप ला रहे हैं रिश्तेदार बच्चा पागल हो गया, ऐसा नहीं है, या बिल्कुल ठीक ही नहीं होगा. और इसका ये भी हम नहीं कहेंगे कि यार ऊपरी हवा लग गई, काली नज़र लग गई, जादू हो गया, भूत आ गया, वो बातें भी नहीं कहेंगे. ये हमारे पास ट्रीटमेंट अवेलेबल है, इससे हम इतना इंप्रूव कर सकते हैं, एंड ये हमारा रोल है उनको समझाना. एंड डेफिनेटली ये होता है, हम लोग भी ये नॉर्मल पार्ट ऑफ आर कल्चर है, इस चीज़ हमें डील करना पड़ता है. बहुत सारी चीज़ें ने, इवन एडिक्शन में भी ऐसा होता है कि भाई ये तो नशेड़ी है, ये बेवड़ा है, ये ऐसा है. लोग करते हैं, लोग सोचते हैं, ये हमारा काम है एज डॉक्टर, एज साइकाइट्रिस्ट, कि हम उनको समझाएं कि सही चीज़ क्या है ना. जैसे एडिक्शन हो गया, एडिक्शन में पहले मानते थे यार नशा जो कर रहा है वो उसका अपनी मर्जी से कर रहा है, उसकी खुद की गलती है, ये हर गंदी हरकतें हैं, ऐसा लोग मानते हैं. अब भी होता है ऐसा, एंड ये नॉर्मल चीज़ है, लोग सोचेंगे ऐसा. बट हमारा ये फ़र्ज़ है कि समझाने कि यार क्या मेडिकल मॉडल है, कैसे क्या डिजीज़ है, क्या अंडरस्टैंडिंग है, वो हमें करना पड़ता है. डेफिनेटली वो मे बी सेकेंड ईयर थर्ड टायर सिटी वहाँ पे ज़्यादा ऐसा हो रहा है, दिल्ली में मे बी कम होता हो, बट जब आप टॉप इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट के काम करो, हर जगह से पूरे देश से आते हैं, तो बहुत सारे उन पहले इनिशियल काम साइकाइट्री में ये होता है कि आप पहले उनको ये समझाएं कि यार ये डायग्नोसिस है, ये चीज़ है, इसमें ये मेडिकल कंपोनेंट है. हम नहीं कह रहे कि आपका जो बिलीव्स है वो सही है गलत है, ठीक है, आप जो करने. बहुत सारे पेशेंट जैसे मैं एमडी कर रहा था इबास में, ऐसे आते थे कि यार हम यहाँ से झाड़ा लगवा लिया, हमने ये कर लिया, ऊपरी हवा ये कर लिया, इसने ये बोला, भूत निकलवा लिया, फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है. अब आपको ये सोचना है कि आप बैठ के उनसे आर्ग्यू नहीं कर सकते हो, एंड उसका कोई फ़ायदा नहीं होता ऑनेस्टली. आप उनको नहीं प्रीच करने लग जाओ कि यार ये सब गलत है, वो है, सबका बिलीव है, अपना कल्चर है ये, तो हम उनको समझाते हैं कि ठीक है ये भी ऐसा आप सोच लो, ठीक है, हमारा ये है मेडिकल अंडरस्टैंडिंग, ये हम ऐसे ट्रीटमेंट दे सकते हैं. एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. पार्ट ऑफ साइकाइट्रिक ट्रीटमेंट इज प्योरली ये कि आप एजुकेशन ऑफ द पेशेंट, देयर रिलेटिव, एंड टू स्प्रेड अवेयरनेस. हम एक बंदे को ठीक करेंगे, अब जैसा कहीं कोई गांव से आ रहा है जहाँ पे ऐसा लोग मानते हैं यार ऊपरी हवा लग जाती है, एक को ठीक करेंगे, वो जाके 3 को बताएगा कि नहीं जो भी है ऐसा हम इलाज अवेलेबल है, तो इससे अवेयरनेस बढ़ता है. और बहुत सारे मैंने ऐसे केसेस देखे हैं, लोग आके बताते हैं कि हमने इनको भी बताया, हमने अपने गाँव में बताया, लोग समझते हैं. इससे में प्रोसेस स्लो है, टाइम लगता है, बट धीरे धीरे चीज़ बढ़ती है. ऐसे ही एडिक्शन में होता है कि हम एक पेशेंट को ठीक करते हैं, उनके फैमिली वालों को समझाते हैं कि यार ये मेडिकल वो है, डिजीज़ है, आप ये मत सोचो कि सिर्फ गंदी हरकत है, नशा है.
एक इंसान ठीक होता है, वो अपने दोस्तों को जाके और लोगों को जाके बताते हैं, अवेयरनेस बढ़ती है। एंड साइकाइट्री में दिस, हम हमेशा जब भी केस डिस्कस करते हैं, हम हमेशा ये चीज़ हमेशा बोलते हैं और करते हैं कि साइको एजुकेशन, कि हम फैमिली को कैसे समझाएंगे, पेशेंट को कैसे समझाएंगे। तो ये हमारा रोल है, हम करते हैं और ये करना ही पड़ता है। बाकी ब्रांचेस में भी होता होगा, तो ये हमारा रोल है। कितना प्रेवलेंट है एडिक्शन आज के दिन पे? सर, एडिक्शन का अपना चैलेंज ये है कि इट इज़ वेरी एग्जैक्ट सर्विस में डाटा, अगर आप वैसे भी देखो नंबर्स इन अ कंट्री लाइक आर्स, इट्स अ ह्यूज। आप जब बात करो अगर 2%, 3%, अगर आप एब्सोल्यूट नंबर्स को देखने आ जाओ, हमारे देश में शायद 140 करोड़ पॉपुलेशन होगी। अगर आप 2%, 3% भी देखने लग जाएं, वो भी करोड़ों में बात आ जाएगी। तो एन एडिक्शन में ये होता है कि एक बंदा एडिक्ट है तो पूरी फैमिली को इफेक्ट हो रहा है। तो आप ये सोचो, अगर एक पर्सन यूज़ कर रहा है या डिपेंडेंट है, तो उसकी पूरी फैमिली है। तो हमें ऐसे सोचना पड़ता है। इट इज़ वेरी प्रेवलेंट, वेरी कॉमन। एडिक्शन का सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि सबसे पहले ये एक्सेप्टेंस लाना कि यार ये दिक्कत है। मोस्टली एडिक्शन में सबसे ज़्यादा पेशेंट को ये रहता है कि मैं तो अभी छोड़ दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है। हज़ार उनके साथ चीज़ें हो जाती हैं। लिवर जैसे लोग हैं, सालों से अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं, अब लिवर में इफेक्ट आ रहा है, सिरोसिस हो गया, फिर भी लोगों को लगता है कि हम तो छोड़ देंगे, अभी जब हमारा मन करेगा, वो नहीं छोड़ पाते हैं। एंड इट इज़ वेरी कॉमन। एंड जितने भी होते हैं, मतलब जितने भी आप चीज़ें सब्सटेंस हम ले, जो ये लोग यूज़ करते हैं, जो आप बॉडी में ऑर्गन सोच लो, उस पर इफेक्ट होता है। आप अल्कोहल ले लो, उस पर हर चीज़ पे फ़र्क पड़ता है बॉडी में। तो वेरी वेरी कॉमन है। नंबर टू बी ऑनेस्ट इज़ वेरी हाई फॉर बोथ, एंड ऑल्सो बिहेवियर एडिक्शन ऑल्सो। आज के टाइम पे ये भी उतना ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि बहुत सारे लोग हैं यार ये तो नॉर्मल चीज़ है, तो वो दैट इज़ ऑल्सो मे बी एन एडिक्शन। जैसे गैम्बलिंग हो गया, गेमिंग हो गया, तो अभी वो तो रिकॉग्नाइज भी हो गए हैं बाय ICD-11 कि भाई दीज आर डिसऑर्डर्स। तो एब्सोल्यूट नंबर में इट्स ह्यूज, ह्यूज पॉपुलेशन आर कंट्री नीड्स ट्रीटमेंट फॉर मेंटल इलनेसेस। Do you think the rural India, I'm just excluding the top tier cities, post second and third tier cities, are they ready for a branch like psychiatry? Are they ready to accept there are psychiatric illnesses across the country? Honestly, sir, I think this is the best time. It is, अभी people have started to understand even at rural level कि yes, this is कुछ हो सकता है, purely कुछ गलत नहीं है, नज़र नहीं लगी है something. This is the time जब हमें we can act to improve understanding. अभी आजकल इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, everybody has access to everything. तो I honestly feel this is the right time where more initiatives can be taken, awareness और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। एंड yes, अभी इट इज़ अप टू अस टू स्प्रेड द अवेयरनेस एंड गेट। अगर जो लोग ये बोल रहे हैं कि यार गाँव में लोगों को समझ नहीं आएगा, यार वो अपने आप ये सोचो यार आपका काम है एज अ साइकाइट्रिस्ट, ये मेरा काम है। सिटी शहर दिल्ली में रह के, शहर में रह के सब काम कर सकते हैं, मैं भी कर रहा हूँ, बहुत आसान है समझाना, बट असली चैलेंज वही है। एंड आई थिंक ये बिल्कुल सही समय है जब ये चीज़ करी जा सकती है। The government has taken out a lot of Yeah. initiatives in the budget. क्या क्या लगता है आपको फायदेमंद रहेगा? सर, एक तो लाइक जो बजट में चीज़ें हैं कि एपेक्स सेंटर इन नॉर्थ भी डेवलप करेंगे, दैट्स अ ग्रेट थिंग। जैसे निमहांस साउथ में एपेक्स सेंटर है, एंड जो एग्जिस्टिंग सेंटर्स है, CIP रांची हो गया, जो तेजपुर में सेंटर है, उनको एपेक्स इंस्टीट्यूट बनाएं, उस लेवल की ट्रेनिंग दे, सब कुछ करें, दैट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। एंड मोर इम्पॉर्टेंट इज़ जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, टेली हेल्थ है, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस है आज के टाइम पे। ठीक है यार, मे बी हर कोई गांव में जाके वो नहीं कर पाएगा, पर टेक्नोलॉजी हर जगह है, हम वही सर्विसेज थ्रू टेक्नोलॉजी भी दे सकते हैं। एंड गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो फोकसिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हेल्पलाइंस हो गई, ऑनलाइन थेरेपी हो गई, जो कि अब गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो फोकसिंग ऑन लॉट, इस बजट में भी करा है, थ्रू विच हम जो हमारी रूरल पॉपुलेशन भी है, हार्ड टू रीच एरियाज भी हैं, उनमें भी पेनिट्रेट कर सकते हैं एंड साइकाइट्रिक सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ग्रेट ग्रेट इनिशिएटिव्स जो अभी इस बार बजट में लिए गए हैं, जो अनाउंस करे गए हैं। निमंस शू खोलना सही ऑप्शन लगता है? क्योंकि जितना भी इन्होंने एम्स भी खोले हैं, अपार्ट फ्रॉम अ कपल ऑफ एम्स, रेस्ट तो खराब ही पड़े हैं। कौन सा है वो एम्स? कल्याणी की बात करते हैं, दरभंगा की बात करते हैं, हार्डली एनी इंफ्रास्ट्रक्चर, दे आर टेकिंग अप एडमिशंस, बट कुछ भी नहीं है, खोखला है। क्या निमंस टू के साथ भी यही होगा? सर, अब ये तो मतलब इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। अब गवर्नमेंट कैसे प्लान है, कैसे होता है, वो मेरे लिए तो कह पाना बहुत मुश्किल है, बट इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव टू बी ऑनेस्ट। अच्छा, एक बात बताओ, आज की जो साइकेट्री की ट्रेनिंग होती है, ऑफ कोर्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टॉप 10 इंस्टीट्यूट, थोड़ा सा जनरल होके बताना, डू यू थिंक दैट इट्स अप टू द मार्क? Honestly, no. The kind of things that we see in top level colleges is not what everybody gets to see maybe in smaller cities or some private colleges. बहुत सारी चीज़ें limited, the kind of exposure they are getting, the kind of things they are doing in their training, the kind of digital technologies या neuromodulation that they get access to is much
less or non-existent in most of the colleges. So definitely there's some steps can be taken or are being taken to improve the curriculum for both UG psychiatry as well as PG psychiatry कि इतने सारे जो और रिस्पेक्टिव हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे भी जो लेवल है वो बढ़ाया जा सके ट्रेनिंग का. तो डेफिनेटली दैट नीड्स टू बी डन. तो उस और डिटेल में बताओ क्या इम्प्रूव हो सकता है. सर बहुत सारी जैसे चीज़ें हैं लाइक दिल्ली वगैरह में वी गेट टू सी द होल स्पेक्ट्रम इन साइकाइट्री. ये केस हैं बाकी बड़े हॉस्पिटल्स में डिपार्टमेंट्स के साथ काम करने को मिलता है. जैसे गेस्ट्रो से केस आएगा, इधर से आएगा, आप सोच सकते हो यार ये पेशेंट है इसका लिवर ट्रांसप्लांट होने आप भी क्लिनिक से. सिमिलरली बाकी हैं केसेस हैं बाकी डिपार्टमेंट के साथ काम करने को मिलता है. जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन साइकाइट्री है जैसे न्यूरो मॉड्यूलेशन होगी वो करने मिलता है. अब जो सेकेंड या थर्ड ईयर सिटीज़ हैं वहाँ पे जो कॉलेजेस हैं उनमें एक तो द काइंड ऑफ केसेस दैट दे आर सीइंग दैट इज़ लिमिटेड, द रिसोर्सेज आर लिमिटेड. हम लोग यहाँ पे बैठ के बहुत सारी चीज़ें सोच पाते हैं, कर पाते हैं. डेफिनेटली दैट रिक्वायर्स रिसोर्सेज जो कि मे बी यहाँ पे नहीं है. एंड ऑल्सो यहाँ पे जो जब ड्यूरिंग आर ट्रेनिंग काइंड ऑफ फैकल्टी वी आर एक्सपोज टू, दे आर वेरी ट्रेन्ड, दे आर वेरी प्रोफेशनल, दे आर लाइक इंडिया में इंटरनेशनल लेवल पे दे हैव डन अलॉट, सो दे हैव एक्सपीरियंस जो मे बी बहुत सारे कॉलेजेस में नहीं होगा. तो बहुत सारी चीज़ें हम एमडी में साइकाइट्री इज अ ब्रांच जो आप किताबों में पढ़ो इज़ वेरी डिफरेंट एंड प्रैक्टिकली वेरी डिफरेंट है. एंड उसमें ये है जो किताबें हम वो बाहर की पढ़ते हैं, वो अमेरिका हो गया वहाँ की बातें चल रही हैं किताबों में, याद हमें वही करना है, एग्जाम में पूछा हुई ज़्यादा, पर प्रैक्टिकली वो बातें नहीं चलती. आज हमारे देश में तो नहीं चल पाती हैं. अब ये बात हम प्रैक्टिकल क्या हो रहा है क्या समझना है कैसे, ट्रेनिंग में तो आपको नीड होता है ऐसे एमडी में. वो जो हमारे रिस्पेक्टिव कंसल्टेंट है फैकल्टी हैं उन पे डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं कैसे I ट्रेन think कर there रहे should हैं. be a separate book by an Indian author enlisting all the cases which happen in the real India. आप मैं जन्म वापस से रिपीट कर रहा हूँ, मैं ये चुड़ैल और साइकोसिस का जो इक्विवेलेंसी हम लोग लेके चलते हैं, कब तक हमारे डॉक्टर्स को बाहर की बुक्स पढ़कर वो देखने के लिए भेजा जाता है. दिस इज लाइक लर्निंग ऑन द जॉब, विच शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ इट. आपको पहले ये तो पता होना चाहिए ना पीछे से कि हाँ यार दिस इज व्हाट सपोज टू बी एंड दिस इज व्हाट आई सॉ इन द रियल पेशेंट. या डेफिनेटली सर. तो ये चीज़ें उसमें मोर इम्पॉर्टेंट कि ये सब भी एस्पेक्ट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साइकाइट्री इन अ कंट्री लाइक आवर्स, तो ये अडेप्ट करना समझना तो ये चीज़ भी थोड़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है. किताबें तो चलो ठीक है लोग बाहर पढ़ते हैं, हम वही हैं ऑथर फॉरेन ऑथर, अच्छा भी लगता है बताने में, सोचने में, याद करने में, बट प्रैक्टिकली ये चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं और अडेप्ट करनी. और मे बी जो हमारे सेकेंड या थर्ड ईयर सिटी में मेडिकल कॉलेज वगैरह उनमें उतनी अच्छी ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है. एंड अभी बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं टू प्रमोट कि भाई ये साइकाट्री का करिकुलम है, ये चीज़ होनी चाहिए. बहुत सारी जैसी चीज़ें हैं, थेरेपी हो गया. अब जस्ट टू टेल इन ब्रीफ कि अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें, अब थेरेपी हमारे जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वगैरह होते हैं वो साइको डायग्नोस्टिक्स थेरेपी करते हैं. बट इन एमडी ऑल्सो वी आर एक्सपोज एंड एज अ साइकाट्री रेजिडेंट इट्स आर ड्यूटी नॉट ओनली टू लर्न बट टू प्रैक्टिस थेरेपी. अब हम लोग यहाँ पे हम करते हैं, हमें उतना टाइम देते हैं, उतना सीख पाते हैं, उतने उस चीज़ के रिस्पेक्टिव फैकल्टी चाहिए आपको सिखाने के लिए, वो मे भी बाहर के सेंटर्स में ही है. तो कॉन्फिडेंटली बात, जब तक आपका एमडी होता है आपको लगता है यार थेरेपी ये तो मतलब बता देंगे, बट खुद कर पाना एंड वो नहीं करते हैं लोग. बट जैसे हम लोग हैं यहाँ पे हमारा मिनिमम होता है कि इतने आवर्स आपको करना ही करना है, एंड वो चीज़ों पे फिर इवेल्युएट वगैरह भी होता है. तो फिर इवेंचुअली हम इतना सोच करके सीख पाते हैं एंड फिर बाद में कर पाते हैं, जो मे भी बाहर नहीं हो रहा है. एंड सिमिलरली बहुत सारी चीज़ें, ECT इज़ अ स्टैंडर्ड थिंग इन साइकाट्री, वो मोस्टली शायद हर जगह हो रहा होगा. बहुत सारी नई चीज़ें जैसे न्यूरो मॉड्यूलेशन हो गया, RTMS होता है, वो अच्छी खासी महंगी मशीन है, सब कुछ वो दिल्ली के सेंटर्स में अवेलेबल है, बाहर में भी नहीं. कॉमनली सबसे ज़्यादा केसेस, बिकॉज ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज जितने भी स्टूडेंट नीट पीजी काउंसलिंग में जा रहे होते हैं उनका पहला सवाल ये होता है कि सर साइकेट्री में होता क्या है. ऑल राइट, बिकॉज इन द अब इतनी देर से हम बात कर रहे हैं, एक्सपोजर तो है ही नहीं ना. तो मुझे बताओ कि लेट्स सपोज अगर एक डॉक्टर साइकेट्रिस्ट बनने का रास्ता पकड़ता है तो सबसे ज़्यादा कॉमन केसेस क्या देखने को मिलते हैं? सर साइकाट्री में अगर अगेन वो डिपेंड करता है कि अगर आप किसी एपेक्स इंस्टीट्यूट वगैरह में तो आपको पूरा स्पेक्ट्रम मिलेगा. जैसे हमें साइकोसिस के केसेस बहुत मिलते थे जिसमें अब लोग अब हैं कुछ भी हो रहा है, डिल्यूजन है, हेलुसिनेशंस हैं. अदर देन दैट मोस्ट कॉमन एंड वेरी कॉमन आर केसेस विच प्रेजेंट विद एंग्जाइटी या डिप्रेशन. तो ये सबसे ज़्यादा हमें यही मिलते थे, या कोई सम अदर सिम्टम है विच इज़ लाइक हेडेक है ड्यू टू सम अदर रीज़न, ये वो, तो वो सब है. तो बट नंबर 1 सबसे ज़्यादा हमें डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी केसेस मिलते हैं. तो उसके बाद सेकेंडली साइकोसिस है. ये मेरा एक्सपीरियंस तब है जब मैं एक मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट में था, ये बात से प्योरली केटरिंग टू साइकाइट्री न्यूरोलॉजी, नॉट अ जनरल हॉस्पिटल, तो वहाँ पे था. सेम अगर आप जनरल हॉस्पिटल में एक्सपोजर लें तो वहाँ पे ज़्यादा केसेज ये आते हैं कि यार एंग्जाइटी है, पैनिक अटैक है, डिप्रेशन है, सबसे ज़्यादा केसेज आपको ये देखने मिलते हैं. साइकोसिस थोड़ा कम मिलता है. मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट्स में आपको साइकोसिस ज़्यादा देखने मिलता है. एंड साइकाइट्री में आपको इवेंचुअली आप 3 साल में
मोस्टली अच्छे इंस्टीट्यूट्स में हर चीज़ का एक्सपोजर मिल जाएगा, ये सब हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे अब कुछ ना कुछ ऐसे IBS हो गया, समथिंग हो गया जिसका कुछ और समझ नहीं आ रहा रीज़न नहीं, मे बी साइकाट्रिक कॉज हो, साइकोलॉजिकल रीज़न हो, तो वो वैसे केसेस भी आपको बहुत देखने मिलते हैं, वो भी अपनी लर्निंग के लिए अच्छा होता है। तो ओवरऑल आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर सारे तरह के केसेस का मिल जाता है साइकाट्री में। तो आपको मतलब ये नहीं लगेगा कि यार मेडिसिन में तो ये यहाँ मैं कार्डियो देख रहा होता, ये नेफ्रो होता है एंड सो ऑन। वैसे ही साइकाट्री में भी आप सोच सकते हैं कि यार मूड डिसऑर्डर देखने मिल रहा है, स्किज़ोफ्रेनिया देखने मिल रहा है, एडिक्शन देखने मिल रहा है। एंड साइकाट्री एज अ ब्रांच के मैं ये एडवांटेज बताना चाहूँगा, मेडिसिन में जब आप डील कर रहे हैं तो आप यू आर डीलिंग विद मोस्टली एडल्ट्स। साइकाट्री में आपका लाइफ स्पैन अप्रोच है, आपको ऑटिज्म देखने मिलता है, ADHD मिलता है 3-4 साल 5 साल का बच्चा, बाकी आप एडल्ट्स देख रहे हैं। आपको जेरेट्रिक्स में ये डिमेंशिया देखने को मिलता है, 60-65 सो ऑन, लेट लाइफ डिप्रेशन सब कुछ मिलता है। तो साइकाट्री में आपको पूरी वैरायटी मिलेगी। अब ऐसा नहीं है कि आप लिमिटेड हो जाएगा यार वही है। एंड प्रेजेंटेशन सेम, एंग्जाइटी जो है एक टीनेजर में अलग होती है, उसके बाद यंग एडल्ट में अलग है, एंड इवन जो लेट एज हैं 60-67 उनमें एंग्जाइटी डिप्रेशन बिल्कुल अलग है। कभी आपने देखा है पेशेंट्स को वायलेंट होते हुए? सो साइकाट्री में ये बहुत कॉमन होता है, एंड दिस इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ साइकाट्री ट्रेनिंग। आई पेशेंट्स, बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो आते हैं मे बी इन एक्यूट मेनिया या इवन साइकोसिस वगैरह में, हु आर वायलेंट एंड हु एट टाइम्स I have personally been slapped also. I've been choked also. And one of the very interesting experiences मेरे को स्टार्टिंग में हुआ था. So we had semi open wards जहाँ पे बाहर से लॉक्ड होता था. तो वहाँ पे मुझे मोस्टली बताया गया था कि आप जब भी जाओ थोड़ा चौकन्ने रहो. तो मैं ऐसे एक दिन शाम को इमरजेंसी ड्यूटी पे था, थोड़ा घूम रहा था. एक पेशेंट रैंडमली आके मुझे चप्पल मार के चली गई. क्यों मारी मुझे भी आज तक समझ नहीं आया, बट ऐसा होता था. एंड ये चीज़ें होती थी. एक बार ऐसे पेशेंट है, उनको बात करते करते मीनिया का था, मे बी कुछ अच्छा नहीं लगा, तो दे स्टार्टेड गेटिंग अ बिट वायलेंट, दे ट्राई टू चोक मी. एंड ये होता है. एंड उसमें मैं ये नहीं कहूँगा पेशेंट कर रहे हैं, इट्स पार्ट ऑफ देयर इलनेस. ऐसा ये नहीं है कि पेशेंट आके साइकाइट्रिस्ट को पीटते रहते हैं, ऐसा नहीं होता. ऐसा नहीं है कि ये नॉर्म है, बहुत रियली है, बट ऐसा कभी कभी हो जाता है. तो वो चीज़ आपको, यू हैव टू बी रेडी. पेशेंट्स का कभी कभी बिहेवियर मे बी जो उनके अंडरलाइंग डिसऑर्डर है वो उतना अच्छा ना हो, बट आपको एज अ साइकाइट्रिस्ट ये बात समझनी पड़ती है. पेशेंट्स आपको बातें भी सुनाते हैं, वर्बली भी अब्यूज़ करते हैं, एंड मारपीट भी कभी कभी हो जाती है, बट नॉट, ये ऐसा नहीं कि रोज़ होता है या कॉमन है, रेयर है. बट जब आप एज रेजिडेंट हो तो चीज़ों का एक्सपोजर मिलता है. एंड ये आई थिंक दिस एड्स टू योर ट्रेनिंग कि भाई कैसे आपको अपना डिकोरम मेंटेन करना है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे. बहुत सारे लोग आपको बहुत बातें सुना देंगे एटलीस्ट साइकाइट्री में कि यार ये हमारे, पहले तो ये चीज़ एक्सेप्ट करना कि हमें साइकाइट्रिस्ट के साथ भेजा गया है. वो आके आपके फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे, क्या मेरे को, मैं पागल थोड़ी हूँ, मेरे को क्यों भेज दिया, ये पागलों के डॉक्टर आपको आके अच्छी खासी बातें सुनाते हैं. एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ये चीज़ समझना कि ये ये स्टिग्मा जो है, अब आप उस पॉइंट ऑफ टाइम पे खुद गुस्सा करें, लड़ें, आर्ग्यू करें, ठीक है, एज अ पर्सन वी आर ऑल्सो ह्यूमन, वी साइकाट्रिस्ट आर ऑल्सो ह्यूमन, कई बार लगता है ऐसा, बट इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग टू अंडरस्टैंड ये बातें कैसा हो रहा है. एंड हाउ इन आर ट्रेनिंग हमें ये चीज़ कैसे हैंडल करना है कि कैसे कौन पेशेंट जो एग्रेसिव हैं, कौन वर्बली एग्रेसिव है उनसे कैसे बात करना, जो फिजिकली एग्रेसिव है उनसे कैसे बात करना. बहुत सारे केसेस में हम ये बात सोचते हैं वर्बल डी एस्केलेशन करना, कि पेशेंट को सिंपल टर्म्स में कैसे हम शांत करें, कि उनकी बात भी सुनी जाए, उनका क्या कंसर्न है समझा जाए, और कैसे फिर अच्छे तरीके से चीज़ होती है, ये होता है. एंड कभी कभी फिजिकली भी हो जाता है, बट वेरी रेयर, नॉट वेरी कॉमन. बट हाँ, साइकाट्री में आपको ये बात दिमाग में रखनी पड़ेगी, ऐसा हो सकता है, तो इसमें कोई वो नहीं है. बट अगेन यू हैव टू मेक श्योर कि यू आर प्रोटेक्टेड एंड सब कुछ. एंड मोस्टली जिन हॉस्पिटल्स मैंने काम करे, इट द सेटअप्स हैव बीन गुड, अच्छे गार्ड्स, अच्छी सिक्योरिटी होती है. तो ऐसा मुझे कभी अनसेफ या गलत नहीं तो लगा. टॉप इंस्टीट्यूट्स है ना, अब इनको मैं पैरामीटर नहीं मान सकता. पैरामीटर हुए एक जनरल, एक सेकंड टीयर, थर्ड टीयर सिटी का कोई इंस्टीट्यूट है जहाँ पे ऑफ कोर्स सी बात है सिक्योरिटी नहीं होगी, तो वहाँ पे सेफ्टी का कैसे करते हैं? तो बहुत सारी जैसे चीज़ें होती हैं कि OPD में आप कहाँ बैठ रहे हैं, कहाँ से आप इजीली निकल सकते हैं, तो ये सब चीज़ें मोस्टली देखी जाती हैं साइकाइट्री में, कि आप कैसे कर सकते हैं, कैसे बिहेव कर, क्या करना है. एंड आपको खुद का बिहेवियर भी कैसा होना चाहिए, आप कैसे बात करेंगे. अब कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा एजिटेटेड है तो आप उनसे बात करने का तरीका अलग होगा. कोई पेशेंट डिप्रेशन में आ रहा है बिल्कुल, तो उनसे आपके बात करने का तरीका अलग होगा. तो ये सब चीज़ें हमें ट्रेनिंग में देखनी पड़ती हैं और सीखनी पड़ती हैं. जब आपको चोक किया जा रहा था, पेशेंट चोक कर रहा है, पेशेंट इज नॉट इन कंट्रोल, या एट दैट मोमेंट व्हाट डिड यू डू? तो फॉर मी आई वॉज एबल, जैसे हमारे पास ये था कि हम बेल बजा देते थे, गार्ड्स थे वो जस्ट रूम के बाहर खड़े, तो इमीडिएटली आ गए, उन्होंने पेशेंट को कंट्रोल कर लिया, पेशेंट को इमरजेंसी ले गए. फिर देन हम वी वर एबल टू डी एस्केलेट द पेशेंट. एंड लेट्स जो सपोज गार्ड्स ना होते फिर?
तो सर मेरे लिए वो चीज़ थोड़ी मुश्किल होती डेफिनेटली। अब मैंने इस बारे में बहुत ज़्यादा उसके बाद कभी सोचा सोचा नहीं, बट दिल्ली में जैसे उसमें वहाँ पे हमारे पास हमेशा ये चीज़ फैसिलिटीज़ रही हैं। बट ऐसी सिचुएशन में आई डोंट नो ऑनेस्टली कि अगर ना गार्ड्स होते, क्योंकि मैं क्या करता मुझे नहीं पता ये एंड सच व्हाट में। इफ द पेशेंट कुड मे बी स्कैल्पल पड़ा होता है, कुछ पड़ा होता है, कि वो उठा लेते हैं, दे कुड स्ट्राइक सिंपली। एंड यहाँ पे तो आप लॉजिक को भी नहीं बीच में ला सकते ना, कि ठंडा कर दो आदमी को, गुस्से में है, ठंडा कर दिया, शांत कर दिया। पेशेंट इज कम्प्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल। सर ऐसा हो सकता है, बट दिस इज़ अ वेरी अगेन वेरी रेयर थिंग। जैसे आज के टाइम पे होता है, बाकी ब्रांचेस में भी पेशेंट्स कभी कभी है मिसबिहेव कर जाते हैं, फिजिकली पीटते हैं, वो होता है। बट अगेन साइकाट्री में दैट हैपन्स, बट इट इज़ वेरी रेयर। मैं ये नहीं कहूँ कि डे टू डे में आपको हमेशा इस चीज़ से डर के जीना है। कभी कभी रेयर है, इट बट माइट नेवर आपके साथ हैपन तो विद। काफ़ी हुआ है ना। हाँ सर, जब आप ऐसे इंस्टीट्यूट वगैरह में काम करते हो होता है, एक्सपीरियंस मिलता है। बट अगेन मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत कॉमन है, ये चीज़ बहुत रेयर है। ट्रेनिंग में होता है, जब आप स्टार्टिंग में हो, आप चीज़ें समझ रहे हो तो ऐसा होता है, बट कॉमन नहीं है ये चीज़। क्या ये ब्रांच लड़कियों के लिए सेफ है? हाँ, बिल्कुल सर, ऐसा कोई रीज़न नहीं है। मतलब जब मैं एमडी भी कर रहा था, या मैं जब डीएम भी कर रहा था, इवन भी आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ माई कलीग्स आर फीमेल समहाउ। देर आर अ लॉट ऑफ फीमेल्स इन बोथ साइकाट्री एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड मेंटल हेल्थ, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। एंड आज इट्स इक्वली टोटली सेफ फॉर फीमेल्स ऑल्सो। ऐसा कोई रीज़न नहीं है। अगेन मैं यही सबको बताना चाहूँगा, ऐसे रेयर चीज़ों पे आप अपना एक्सपीरियंस बेस ना करें, वो कभी भी लाइफ में हो सकती हैं। दीज आर वेरी रेयर थिंग्स दैट हैपन, बट honestly I feel it is absolutely safe for everybody. ऐसा कुछ नहीं है। I am doing my online practice and working 3 to 4 days a week. So what's the difference between a government setup and a private setup? First of all, government setup में the number of patients coming are much more, and variety पूरा crowd होता है, right? Starting from maybe who have come from far away places, then who are from that place only, and economically also people, सब तरह के लोग आते हैं। Some people have come just for the name, just for getting medications, some people to clarify things. Private setup में ये है कि people who come are much more informed, तो उनको ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं। बहुत पॉजिटिव नेगेटिव है, लोग बहुत सारी चीज़ें सही या गलत पता करके आते हैं। गवर्नमेंट में जब आप सेटअप में बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ती हैं, आपको एजुकेट करना पड़ता है। प्राइवेट में लोग सही या गलत एजुकेट होके आते हैं, तो ये चीज़ है। एंड कैसे उनसे डील करना, क्या करना, तो ये डिफरेंस दोनों में है जो मैंने अभी तक फील करा है। वैसे आपने तो पूरा टाइम गवर्नमेंट में काम किया है, हाँ जी। तो प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू करी, जैसा आप बता रहे हो कि पेशेंट्स का पूरा बिहेवियर ही लाइक डिफरेंट था, तो कैसे एडजस्ट कर रहे हो? अभी तो आई एम जस्ट लर्निंग, मतलब जो नुएंसेस हैं मैं एडजस्ट कर ही रहा हूँ अभी, कि कैसे कहाँ कितना बिहेव तो आपको करना नहीं है। लगता कि पहले आपको कहीं पे एज अ प्रैक्टिशनर काम करना चाहिए, देन आपको प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू करनी चाहिए अपनी? सर मैं वो भी कर रहा हूँ कि एक ऑलरेडी एस्टेब्लिश सेटअप है जहाँ पे ऑलरेडी हैं साइकाइट्रिस्ट, उनके साथ काम करना, अपनी ओपीडी करना, एंड देन अपनी फुल फ्लेजेड ओपीडी करना। मैं दोनों चीज़ें अभी कर रहा हूँ। प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट करना कितना मुश्किल है? काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस। ये सबसे बड़ा शायद चैलेंज मुझे यही लग रहा है कि जब आप सेटअप में बैठो, गवर्नमेंट सेटअप में, आपको कुछ नहीं सोचना। आप पेशेंट आ रहा है, आप देखो जो है, लिखो दवाई, थेरेपी जो कर लो। आप नहीं सोचोगे यार बाहर वो दवाई कैसे है, पेशेंट कैसे आ रहा है, कहाँ बैठा है। प्राइवेट में आपको हर चीज़ इंश्योर करनी है। आप सिर्फ एक डॉक्टर नहीं हो, आपको बाकी सब चीज़ें देखनी है। गवर्नमेंट में आप सिर्फ वही हो, पेशेंट आपके रूम में आया, देखा, कहानी ख़त्म। प्राइवेट में आपको सब कुछ देखना है, तो बहुत बड़ा चैलेंज है। क्या क्या चैलेंजेस फेस होते हैं? तो जैसे सबसे पहले ये चीज़ इंश्योर करना कि क्या कहाँ क्राउड आया, कैसे मैनेज करना है, क्या स्टाफ है आपका, पेशेंट कहाँ एंट्री करके कहाँ जाएगा, कहाँ से उनका सब बनेगा, कैसे हर चीज़ स्मूथली हो जाए, ऑप्टिमाइज, पेशेंट को बहुत ज़्यादा वेट ना करना पड़े, कैसे उनका एक्सपीरियंस बेटर हो। एंड आप पूरे उसमें कि कहाँ से पेशेंट दवाई कहाँ से ले रहा है, क्या कैसे है, सब समझ आ रहा है। मतलब आपको हर चीज़ में सब कुछ करना है, कि दवाई का ध्यान देखना है, कौन से टेस्ट है उनको बताना, सब कुछ करना। गवर्नमेंट में तो आपने एक लिख दिया, वो अब दूसरे कमरे में गई दवाई ले लिया, तीसरे लैब में गए, हो गया टेस्ट, तो आपको नहीं सोचना। बट अब यहाँ पे आपको ये भी सोचना है कि यार कौन सी लैब से या कौन सी दवाई कैसे क्या मिलेगा। तो यू मतलब नॉट जस्ट अ डॉक्टर, आपको सब चीज़ें देखनी है। आपका जो बाकी स्टाफ है, आपके जो रिसेप्शन वाले हैं, कैसे क्या है। अब इवन जब पेशेंट आ रहे हैं उनको पार्किंग वगैरह मिल जाए, आप गवर्नमेंट उसमें ही नहीं सोचोगे, आपका काम सिर्फ वो है। पर प्राइवेट में आपको हर चीज़ इंश्योर करनी है। लोग बहुत समझ चुके हैं ये बातें। कंसल्टेंसी फीस के अंदर डिफरेंस लग रहा है आपको, एज अ फर्स्ट ईयर सिटी और आपके जो दोस्त है सेकंड थर्ड ईयर सिटी के अंदर? डेफिनेटली सर, दिल्ली में कंसल्टेंसी जो फीस, लोग हमारे जो सीनियर कंसल्टेंट्स हैं, वो इन सारी ब्रांचेस में, मेडिसिन वगैरह में भी थोड़ा सा दिल्ली के हिसाब से जो एक्सपेंसेस इन दिल्ली है, सेकंड
थर्ड टीयर सिटी में वहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो उस हिसाब से है, वो डेफिनेटली वहाँ पे कम है। नंबर बताइए मुझे अब जैसे दिल्ली में जनरली आप साइकाट्रिस्ट अगर देखें तो दे चार्ज समवेयर अराउंड 1,000 to 1,500, तो विच इज़ देयर। अब सेकेंड थर्ड टियर सिटीज़ में इट इज़ अ बिट लोअर, मे बी 500-750 ऐसे है। एंड सिमिलरली थेरेपी कॉस्ट ऑल्सो दिल्ली में मे बी थोड़ा हायर है, 2,500-3,000 समथिंग। सेकेंड थर्ड टियर सिटी में ऐसा होता है 1,000 या 1,500 समथिंग, तो डेफिनेटली थोड़ा कम है वहाँ पे इवन, ये चीज़ है डेफिनेटली। लॉन्ग टर्म में आप क्या सजेस्ट करते हो? आई मीन आफ्टर टॉकिंग टू योर सीनियर्स लुकिंग एट देयर ओन ट्रैजेक्टरी, अ प्राइवेट प्रैक्टिस और अ गवर्नमेंट और अ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल? सर आई वुड सजेस्ट कि यू शुड बी वेरी क्लियर विद योर गोल्स। सारी चीज़ें मतलब एक तो ये समझना कि सब सही है और सब अच्छा है। ऐसा नहीं है कि जो गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं वो सही हैं, या जो प्राइवेट में आ चुके हैं या कॉर्पोरेट में आ चुके हैं वो बहुत सही हैं। अपने अपने गोल्स होते हैं। एंड आपको मतलब प्योरली मुझे हमेशा ये लगता रहा है कि मैं किसी और को कॉपी नहीं करना चाहूँगा। मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि मैं लाइफ में क्या अचीव करना चाहता हूँ, एंड मेरे गोल्स किससे अलाइन करते हैं। गवर्नमेंट के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, प्राइवेट के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो आप हर एवरीबडी शुड सी, एंड बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मनी इज़ डेफिनेटली अ फैक्टर एज अ ह्यूमन, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एज डॉक्टर मेरे को नहीं लगता है कि जो लोग ये डॉक्टर्स भी एडमिट करते हैं हम पैसा कमाना चाहते हैं, वो गलत बात है। मेडिकल इज अ फील्ड जिसमें बहुत टाइम, बहुत साल लगते हैं, एंड उसमें कुछ गलत बात नहीं है। और ये चीज़ नॉर्मलाइज करना कि किसी का गोल हो सकता है प्योरली टू अर्न मनी, विच इज़ नॉट रॉन्ग। या बहुत सारे लोगों को गवर्नमेंट उसमें रोल होता है टू बी इन टू एकेडमिक्स, इन टू रिसर्च, दैट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट। तो आप अपना गोल डिसाइड करें कि यार मुझे ये करना है, कोई भी चीज़ गलत नहीं है। मेरे बहुत सारे ऐसे कलीग्स हैं, सीनियर्स हैं, वो आर लाइक खतरनाक इन टू रिसर्च। 150, 300, 400 पब्लिकेशंस हैं, वो पूरा टाइम ये कर रहे हैं। वो ये नहीं सोच रहे हैं बैठ के कि यार मैं यहाँ से इतना पैसा कमाऊँ, नहीं। दे आर हैप्पी इन देयर गवर्नमेंट सेटअप। सिमिलरली बहुत सारे मेरे से कलीग्स हैं या सीनियर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, वो आर इन टू प्राइवेट, जो कि अच्छे प्राइवेट प्रैक्टिस चला रहे हैं, अर्निंग अ गुड मनी। वो नहीं सोच रहे हैं इतनी पब्लिकेशन वगैरह का, उनके अपने गोल हैं। एंड मैं बस यही सबको कहना चाहूँगा, आपके अपने खुद के गोल्स होने चाहिए, विच एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। जस्ट बिकॉज बाकी जब 4 लोग ये कह देंगे यार ये डॉक्टर तो सिर्फ पैसे ही कमाना चाहते हैं, लोग कहेंगे। आप क्लियर रखो, आपको कमाना है, हाँ कमाओ, क्यों क्या गलत है? हर कोई कर रहा है ऐसा, इसमें कोई गलत नहीं है। या आपको गवर्नमेंट में काम करना है प्योरली, तो आप ज़रूर करें। अपने गोल्स आप क्लियर रखो कि आप लाइफ से क्या चाहते हैं, वो करो। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या सोच रहा है, आपके कलीग्स, आपके दोस्त, फैमिली। एट द एंड ऑफ द डे आप डॉक्टर जिस चीज़ से बने हैं, डॉक्टर हम बनते हैं टू हेल्प पीपल। वो आप ऐसा नहीं है कि एक बहुत बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही कर सकते हैं या एक कॉर्पोरेट में कर सकते हैं, आप अपनी प्रैक्टिस में भी कर सकते हैं, रूरल उसमें भी जाके कर सकते हैं। आपको किस चीज़ से खुशी मिल रही है एट द एंड ऑफ द डे, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। और क्या फाइनेंशियल एवेन्यूज होते हैं फॉर अ साइकियाट्रिस्ट अपार्ट फ्रॉम द प्राइवेट प्रैक्टिस और अ गवर्नमेंट जॉब और कॉर्पोरेट जॉब? क्या एवेन्यूज है? और सो एक मेथड वन इज़ कि एजुकेशन। अब एजुकेशन यू कैन प्रोवाइड टू दोज हु आर इन MBBS, उनको साइकाट्री पढ़ाना, या दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जो भी एग्ज़ाम्स हैं, नीट PG हो गया, या दोज जो लोग अपनी MD रेजिडेंसी कर रहे हैं। एंड सिमिलरली आज के टाइम पे जो लोग DM एंट्रेंस वगैरह भी कर रहे हैं, तो वो टीचिंग हो गया। देन वर्कशॉप्स हो गए। वर्कशॉप आप अलग अलग लेवल पे ले सकते हो, कॉलेज में ले सकते हो, कॉर्पोरेट सेक्टर में ले सकते हो, स्कूल्स में ले सकते हो। वो चीज़ सेकेंडली हो गया। देन वेरी इंपॉर्टेंट इज़ राइटिंग, वो चाहे बुक्स हो गए, आर्टिकल्स हो गए, वो चीज़ आप कर सकते हैं। देन उसके बाद आप और भी चीज़ें सोच सकते हैं टू बी एसोसिएट। जब आजकल में भी ऑनलाइन काम करना, आप अवेयरनेस रेज करें, चाहे यूट्यूब हो गया या अदर रिस्पेक्टिव प्लेटफॉर्म्स हो गया, उस पर आप कंटेंट ला सकते हैं। एंड अदर देन दैट, इवन फॉर आई थिंक एवरीबडी इज़, आप इन्वेस्ट करें जो भी अलग अलग शेयर्स हैं या वो हैं, तो वो सब चीज़ें में तो एवेन्यूज़ बहुत सारे हैं। ये बताओ मुझे डीएम के बारे में बताओ। अब डीएम में इतनी सारी चीज़ें आ चुकी है इसके अंदर। गिव मी अ ब्रीफ अबाउट ऑल द ब्रांचेस। ठीक है सर। तो अभी एज ऑफ नाउ इंडिया में टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज 4 सब स्पेशलिटीज़ हैं डीएम में। फेलोशिप बहुत सारे हैं, बट डीएम टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज 4 हैं। पहला इज एडिक्शन साइकाट्री। तो एडिक्शन में बेसिकली यू गेट एक्सपोजर टू एडिक्शन केसेस एंड डुअल डायग्नोसिस केसेस। तो उसमें ऑनेस्टली ऐसा नहीं है कि आप जस्ट वो देखेंगे, जो भी हमारे पास केसेस आते हैं उनकी कोमॉर्बिडिटी होती है, देखना आपको सब कुछ होता है। ऐसा नहीं है कि यार मैं एडिक्शन साइकाट्रिस्ट हूँ तो मैं डिप्रेशन नहीं ट्रीट करूँगी, नहीं, ऐसा नहीं है। करना आपको सब कुछ होता है, बट आपका ज़्यादा फोकस एडिक्शन पे रहता है and उसमें क्या हम कर सकते हैं। एंड यू डील विद एवरीबडी, लाइक मे बी हमने आई हैव सीन चिल्ड्रन एज यंग एज 8 years who were using substances to as old as 72, and even oldest case was a person around 90 years old, एंड इतने भी हैं। ये तो एडिक्शन साइकाट्री में हो गया। तो मेनली केसेस हु हैव सब्सटेंस, आज के टाइम पे ऑल्सो बिहेवियर एडिक्शन बहुत वेरी कॉमन।
बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, हर एज के देखना मिलता है, चाहे वो अब गैम्बलिंग हो, ऑनलाइन गेमिंग हो, इंटरनेट एडिक्शन हो, ये सब चीज़ें देखने मिलती हैं. देन सेकेंड वेरी कॉमन इज़ चाइल्ड साइकाइट्री. तो चाइल्ड साइकाइट्री में यू गेट टू डील मोस्टली विद चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स. तो उसमें बहुत सारे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हो गया, ADHD हो गया, ऑटिज्म हो गया, एंड सेम जो भी इलनेस हैं जैसे चाइल्डहुड डिप्रेशन, चाइल्डहुड स्किज़ोफ्रेनिया, वो सब आपको देखने को मिलता है. तो बहुत चीज़ें आपको देखने मिलती हैं विच आर बट कन्फाइंड टू चिल्ड्रन, वो आप कर सकते हैं. देन जेरेट्रिक साइकाइट्री हो गया एज अपोज टू चाइल्ड साइकाइट्री. उसमें सेम चीज़ें, सारा स्पेक्ट्रम ऑफ साइकाइट्रिक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर बट इन जेरेट्रिक पॉपुलेशन. एंड उसमें एड ऑन ये हो जाता है बहुत सारे न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स हैं, जैसे डिमेंशिया हो गया, पार्किंसोनिज्म हो गया. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्योरली जेरेट्रिक पॉपुलेशन में ही मोस्टली देखने मिलती है, तो ये एक्स्ट्रा उसमें देखने मिलता है. एंड देन फोर्थ हो गया फॉरेंसिक साइकाइट्री. फॉरेंसिक साइकाइट्री इज अ मोर लाइक एकेडमिक ब्रांच. बहुत सारे लीगल एस्पेक्ट ऑफ साइकाइट्री हैं. आप जैसे एक मेंटल हेल्थ केयर एक्ट है, उसमें हर चीज़ डिफाइंड है कि कौन कहाँ एडमिट होगा, नहीं होगा, कैसे ट्रीटमेंट है, क्या राइट्स है. तो ये चीज़ें हैं. और अब बहुत बार होता है एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए साइकाइट्रिस्ट को बुलाया जाता है, ये सब. तो फॉरेंसिक साइकाइट्री में बहुत ज़्यादा जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं उनके साथ डील करते हैं. तो उसमें डेफिनेटली आपकी यूआर MD साइकाइट्री, आप सब कुछ कर रहे हैं, बट आपकी इस चीज़ की एक्स्ट्रा स्पेशलाइजेशन है. तो बहुत सारे लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ साइकाइट्री जो है वो आप एक्स्ट्रा देख सकते हैं. तो ये 4 अभी ब्रांचेस एटलीस्ट इंडिया में हैं. और सिमिलरली अभी अभी मेरे को याद आया, तो एम्स में अभी स्टार्ट करें CL साइकाइट्री, जो कंसल्टेशन लाइजियन. तो साइकाइट्री में बहुत सारे दूसरे ब्रांचेस के साथ हमें काम करने को मिलता है. अब जैसे दूर कहीं से रेफरल आ गया कि ये ऐसा केस है, हम इसमें, अब जैसे जो केसेस मैंने देखे हैं, अब पेशेंट है, उनको लिवर ट्रांसप्लांट की नीड है. अब लिवर ट्रांसप्लांट से बहुत सारे क्लियरेंसेस चाहिए होती हैं. आपको ये साइकाइट्री से भी चाहिए, एडिक्शन साइकाइट्री से भी चाहिए, तो वो आपको केसेस देखने मिलते हैं. सिमिलरली जैसे हम न्यूरोलॉजी के साथ हो गए, बहुत सारे ओवरलैपिंग केसेस हैं, उनके साथ आपको काम करने को मिलता है. ऑब्स गायनी के साथ काम करने को मिलता है कि पेशेंट है, अभी डिलीवरी करी, अभी बिहेवियर चेंजेस हैं, पोस्टमार्टम डिप्रेशन है. तो ये सब चीज़ें हमें बाकी ब्रांचेस में. तो कंसल्टेशन लाइसेंस साइकाइट्री में मोस्टली जो हमारी अदर रिस्पेक्टिव ब्रांचेस हैं मेडिसिन में, उनके साथ जो, क्योंकि मेंटल इलनेस ऐसा नहीं है कि एक इंसान है इसको किडनी की दिक्कत है तो मेंटल नहीं होगी, ऑब्वियसली सब इंसान सब कुछ हो सकता है. तो उसमें आपको जो कंसल्टेशन लाइसेंस बाकी ब्रांचेस के साथ करने को मिलता है, तो उसमें आपको एडवांटेज ये है कि जो रिस्पेक्टिव, अगर ज़्यादा आप यू कैन बी इन टच विद द मेडिसिन और सर्जिकल एस्पेक्ट्स ऑल्सो. आपको जब मे बी एक बर्न पेशेंट आ रहा है, उसके लिए आपको रेफरल आ रहा है कि आपको इसमें ट्रीटमेंट, तो आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए यार, बर्न में क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, वो लोग क्या कर रहे हैं मैनेजमेंट में, जो हमें मेडिकेशंस देने हैं, हमें ट्रीटमेंट देने हैं, वो वैसे एडजस्ट करना है. एंड सिमिलरली अगर मुझे ऑब्स गायनी से रेफरल आ रहा है कि ये केस है, तो अब मुझे वो उतना ध्यान रखना पड़ेगा यार, पोस्टमार्टम है, इसमें ये फार्माकोडायनेमिक्स हैं, ये काइनेटिक्स हैं, और ये लोग ये सोच रहे हैं, वो सब चीज़ें हमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान रहती हैं, जो में भी हम हार्डकोर साइकाइट्री में उतना नहीं सोचेंगे. बट कंसल्टेशन लाइसेंस में आपको ये सब चीज़ों का थोड़ा ज़्यादा है एक्सपोजर मिलता है. तो मे बी जो लोगों को इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है वो इस चीज़ के बारे में सोच सकते हैं. एम्स दिल्ली ने शुरू करा है, पहले मोस्ट प्लेसेस में फेलोशिप थी, बट एम्स दिल्ली में अब CL में भी सीट है, तो फिर 5 हो गए हैं अभी. अगर आपको लाइक फॉर द नेक्स्ट 10 years, if you have to put them in an order, most potential to the least one, for the next 10 years, कैसे आप इनको मैप करोगे? सर अगर मुझे ये सोचना है प्योरली प्राइवेट प्रैक्टिस या उस एस्पेक्ट से, तो आई वुड से कि एडिक्शन साइकाइट्री हैज़ अ ट्रमेंडस पोटेंशियल, आई थिंक मोस्ट पोटेंशियल, बिकॉज obviously substance use in our country is rising, so that is the most important branch. Then child psychiatry is a very good branch, but not private में I'm not very sure, क्योंकि जो हमारे रिस्पेक्टिव पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी हैं, पीडियाट्रिक्स हैं, ऑनेस्टली जब प्राइवेट सेक्टर वगैरह में एक्चुअली अब ऑटिज्म का केस डज नॉट गो टू अ चाइल्ड साइकाट्रिस्ट, गोज टू अ न्यूरोलॉजिस्ट, तो वो डेफिनेटली कंस्ट्रेन वहाँ पे है. देन नंबर 2 पे फिर भी मैं उसको ही रखना चाहूँ साइकाट्री को. नंबर 3 जेरेट्रिक साइकाइट्री है प्राइवेट उसमें, क्योंकि जेरेट्रिक पॉपुलेशन को मैनेज करना इज़ अ ह्यूज थिंग, ऑल द को मॉर्बिडिटी, आपको हर चीज़ ध्यान रखना, तो इट हैज़ अ वेरी गुड पोटेंशियल. एंड अभी बहुत सारी थिंग्स आर ऑन द राइजिंग, डिमेंशिया के केस हो गए, पार्किंसन हो गया, कोई भी कॉग्निटिव डिसऑर्डर हो गया, दैट इज़ देयर. ये 3 है. कंसल्टेशन लाइजन का भी आई एम नॉट वेरी श्योर, एम्स में तो शुरू हुआ, वो तो इतने बड़े इंस्टीट्यूट लेवल पे है. प्राइवेट में मे बी आने वाले टाइम में डेफिनेटली इट विल डेवलप, बट अभी एज ऑफ नाउ आई एम नॉट वेरी श्योर. एंड फॉरेंसिक साइकाइट्रिस्ट प्योरली एन एकेडमिक, वो निमहैंस जैसे बड़े इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे दे आर ऑफरिंग DM टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, और कहीं तो शायद DM भी नहीं है. तो स्कोप इन प्राइवेट सेक्टर आई कांट से एट दिस मोमेंट.
So basically, apart from addiction psychiatry, rest of the branches are too new right now. Yes, but sir, this is again a potential कि जो ब्रांच बहुत सारे ऐसे लोग नहीं हैं who have done their DM in these respective branches. आज के टाइम पे मे भी कम है, 5 साल 10 साल बाद there will be a lot of need for these, and जो लोग आज DM कर रहे हैं तब they will be like on the top on this field. तब वो ये नहीं सोचेंगे यार 10 साल पहले केसेस कम थे तो So my question बहुत simple है. हाँ. Do you think that today doing DM psychiatry Yeah. is a compulsion or simply a plain MD psychiatry can still work? Honestly, MD psychiatry वाले भी as an MD psychiatry Give me a also yes or no in this thing. There can't be any diplomacy. I am asking a very Gen Z point of view. All right, because again, abhi right now nobody is doing DM. Yeah. Hardly anybody does DM. All right. तो यानी कि आपने DM करी है, कुछ तो आपने भी सोचा होगा. तो आज के दिन पे अपने जूनियर्स को क्या सजेस्ट करोगे? yes, you should do. Yes, definitely. There are like many people have done their MD, very few have done or are doing their DM. So this is something, it is out there, you should definitely do. अभी वो उतनी ज़्यादा मे बी मारा मारी नहीं हुई है, उतना ज़्यादा नहीं है, कंपटीशन अभी भी है, बट अभी इट इज़ मच ईजियर एंड यू शुड डेफिनेटली कंसिडर इट. बट 3 साल आपको वही काम करना है जो आप MD में कर रहे थे. रेजिडेंसी आपको मतलब, एंड इट इज़ मोर डिफिकल्ट. आप MD में गलतियाँ करो, चीज़ें करो, सबको लगता है ठीक है JRS सीख रहे हैं. आप एज अ DMSR करो, लोग बहुत सुनाते हैं, बातें सुननी पड़ती हैं, सोचनी पड़ती हैं. एंड वही एकेडमिक्स आप जब करो एज DM, कंसल्टेंट्स जो बात करते हैं, बातें पूछते हैं, बातें सुनाते हैं, दैट एंड बिकम्स मोर डिफिकल्ट. एंड आपको हर चीज़ खुद करनी है. एंड आप ये नहीं कहोगे यार कि अब मैं SR हूँ तो मैं ये काम मैं JR से कर लूँगा. आपको काम सारा खुद करना है और थीसिस करना है, सब खुद करना है. तो 3 साल आप मतलब यूर अ काइंड ऑफ अ ग्लोरिफाइड JR अगेन. आपकी फाइनल एडवाइस टू योर जूनियर्स हु प्लान टू चूज साइकियाट्री एज देयर PG ब्रांच क्या रहेगी? इफ़ यू आर विलिंग, यू फील साइकाट्री इज़ अ गुड ब्रांच, डेफिनेटली टेक इट. ऐसा नहीं है, इट्स नॉट कि भाई कुछ नहीं मिल रहा तो ले ले, नहीं. एक्सपोजर ले लें, चाहे वो आप JRशिप करें, इंटर्नशिप से लें. पहले आप समझ लो साइकाट्री क्या है, ग्राउंड लेवल क्या है, कहाँ जिस भी सेंटर में आप करना चाह रहे हैं वहाँ पे क्या रियलिटी. आप पहले एक्सपोजर ले लो, समझ लो कि आपके लिए सही है या नहीं, एंड फिर लो. ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं मिल रहा तो ये ले लें, ऐसा मतलब बाद में मुश्किल हो जाती है फिर. चलो थैंक यू. अब मेरे पास आपके लिए कुछ रैपिड फायर है. बहुत सिंपल 2 रूल्स. यू हैव टू बी सुपर स्पॉन्टेनियस एंड सुपर ट्रूथफुल. ओके सर. अगर आप साइकियाट्रिस्ट नहीं होते, व्हाट वुड यू बी डूइंग? आई वुड बी समथिंग लाइक अ जज और अ मैजिस्ट्रेट टू, अगर इफ आई एम नॉट अ डॉक्टर, डेफिनेटली. One lesson patients have taught you about life. To be humble and to not treat everybody equally. Rate your work-life balance right now. I have a very good, I would say 8 to 9. I have a very good work-life balance. And that's a good point about psychiatry. Rate your satisfaction with your career choice. 10. I like this answer. Normally when you start talking to person ना, वो थोड़े टाइम में कह देते हैं कि यार ये भी बेटर हो सकता था. But I'm glad that you always rate it out of 10. One mistake you are glad you made early in life. I think always doing what I felt was right, and जो already लोगों का path है, not taking that. Going on my own path, अपनी गलतियाँ अपन करी, सब कुछ करा, अपनी बातें सुनी, pitfalls है, सब कुछ अपना करा. मेरा एक्सपीरियंस है, मैं किसी और के एक्सपीरियंस को कॉपी करके वो चीज़ नहीं चला रहा हूँ. मैंने अपनी हर चीज़ खुद करी. अपने सक्सेस, अपने फेलियर्स मेरे हैं, मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी स्टोरी है. The most interesting case that you have seen in your life. Early on in my MD, there was one patient from far away city, young boy, maybe 18, 19 years old. He presented to us with 5-6 महीने से some behavior changes which started कि initially कि he is talking less to family members, remaining confined, to the point that he would sit on his bed all day, just stare here or stare on the ideals of God throughout 24 hours, not doing anything at all. Like literally he was like a murti, and literally उसको उठा के लाया गया. Patient was in catatonia, so that was the first time I saw catatonia case. Very interesting and best case I remember till date. All right, Dr. Siddharth, thank you so much. You are a very interesting guest. I think you have given us a lot to think about psychiatry, and I really appreciate that. Thank you, sir. And thank you so much, everyone, for watching today's show. I believe psychiatry in a very different perspective, a Gen Z point of view, and where do we stand today with the branch? Is it really going to be something which is going to, be the best in the next 10 years, or is it really just a fad?
Watch this podcast and you will know all the answers. Thank you so much. And as always, do not forget to like, share, and subscribe. Thank you so much, and God bless you.